Hi, welcome to free basic money recovery course for all MSMEs, for all business owners to be able to recover your dues at zero cost. And this is for all legal and accounts graduates and professionals जो अपना एक बहुत successful career बनाना चाहते हैं debt recovery industry में. इस course में as a business owner or as a professional, you will learn those top 3 secrets to recover all your outstanding dues, export dues or business dues at zero cost, fully on your own and without going to court and against any company in India और वर्ल्ड. आपके जो बिजनेस ड्यूज है, एक्सपोर्ट ड्यूज है, उसको आप रिकवर कर पाएंगे, जीरो कॉस्ट पे कर पाएंगे, खुद से कर पाएंगे विदाउट गोइंग टू कोर्ट. और भले ही सामने वाली कंपनी कोई बड़ी से बड़ी लिस्टेड कंपनी हो या पीएसयू हो या कोई छोटी बड़ी कोई भी कंपनी हो, यू विल गेट ऑल द नॉलेज व्हिच यू नीड टू रिकवर योर ड्यूज एट zero cost. And don't forget to watch it till the end so that you get a chance to get a free copy of my new book, Top 3 Secrets to Easily Recover Your Money at Zero Cost. This is priced at 2,999. This is available on Amazon. But if you watch the video till the end, you'll get to know how you can get a free copy of this new book. And also it's important that you watch it till the end so that you don't miss on any important provisions. So let's get started. Are you guys having cash flow and bad debts problem in your business? Is any one of you having cash flow and bad debts problems in your business and you want to recover your long-term and short-term unpaid dues? You want that your customers should always pay on your time. You want what action needs to be taken for recovery of your dues, whether it's from a big company, big corporate, a large PSU, a listed company, or a private limited company, whomsoever. And do you want to put strong measures in place to minimize non-payment or delay payment by your customers? Please type yes in the chat box if you want any of these things, or if you have cash flow and bad debts problems. Fantastic, great. So you're at the right place, because we are going to be discussing few measures and provisions of law which can help you do just that. It's just that the knowledge is missing, the implementation power is missing. That is why we are not able to implement it. So what are we going to cover today? So we are going to be covering number one, definition of MSME. Today, with new definition, 99.5% companies of India are MSMEs. They are total 6 crores and 35 lakhs MSMEs in the country today. A lot of business owners who don't know that they are into MSME, but the methods and means which we are going to be discussing will also cover entities, who do not fall under MSME category, who are bigger than MSME. A few of those methods will also be helpful for them. We are going to be discussing those 3 effective modes of recovery of payments of MSMEs and for business owners, other than civil and criminal proceedings, their advantages, their limitations. What are those methods exactly? We're going to be discussing that. Then we'll discuss quickly that what you need to do now to recover your dues. How can you try and utilize these provisions which can help you in recovery of your dues? The best practices which will ensure timely recovery of your dues, irrespective from anybody, and a few comprehensive solutions to recover all your dues, and what steps you need to take to start recovering your dues immediately, which these provisions can help you to. So a little bit about myself. I'm a qualified solicitor and a lawyer. I'm an advocate on record, Supreme Court of India, and I've been practicing law for the last 14 years now. I've had the privilege to work with different national law firms and different international law firms across different spans of my career as part of my different assignments. And I have been specializing in a lot of corporate matters, money recovery matters, and taxation matters, particularly GST now, which has helped me to gain a good insight into the bottom line problems which the business owners and the MSMEs face. We do not work in any specific civil criminal matters because we focus specially on our specific chosen field of practice, that is the corporate commercial money recovery and taxation matters. So a little bit about our firm. We have nationwide online virtual presence now after the COVID, and we specialize in providing debt recovery, money recovery consulting services, which we have been doing for past few years. But now we have gone virtual, and we with our state of art technology, we'll just see after we have discussed all the provisions. It helps us to serve our clients across the country. We use secure G Suite portals to ensure that our clients are being served seamlessly across all platforms, at the same time maintaining the confidentiality of the information as well. So moving forward, let's start.
What is the MSME contribution to the Indian economy? We are talking about, as I said, 99.5% of the companies today in India are MSMEs, whether you believe it or not. 6 crore 35 lakhs to be precise, approximately. That's the number of MSMEs in India today. And MSME has become the flavor of the nation today. So around 11 crore jobs. The MSME sector generates around 11 crores jobs in the country. It contributes approximately 29% of India's GDP. It accounts for 45% of total exports done by country today, which is huge in itself, majority of the sector. Despite being such a big contributor, it's a little cause of concern that MSMEs are they're facing their biggest problem as non-payment of dues, non-recovery of dues. So a survey was made in 2019 by the ET magazine, which is there on the screen now, in which a few interesting facts were shown. So let's find out what are those facts. So the total customer base, it was found out that the total customer base of the MSME is 46% is private sector. So 46% of the MSME, that's micro, small and medium enterprises clients, they come from the private sector entities. Then it was seen that what is the payment cycle for the MSMEs. So a very interesting figure came out. 44% of the MSMEs, they were having an unpredictable payment cycle. That is, they don't know that within how many days, weeks or months their payment is going to be recovered. Guys, we are also going to be following mix of Hindi and English for the benefit of everyone. So please type if you have any specific preferences. Please type if you want me to continue with pure Hindi or pure English, or Hindi and English mix is fine. So we'll continue accordingly. So 44% of the MSMEs को ये पता नहीं था कि उनके payments को आने में कितना time लगेगा. How much time, whether 60 days, whether 30 days. English is good. Great. Mix, will follow a mix sort of thing. 44% of the MSMEs को ये पता नहीं था that how much time in कितने दिनों में उनके पैसे आएंगे, 30 days, 60 days or whatever. So that's almost half of the MSMEs. Only 22% of the MSMEs says that they recover their payment within 60 days. Only 10% says that they recover within 45 days. This is interesting. 45 days. We'll see why it is important. So almost half of the MSMEs, they have an unpredictable payment cycle. Then how many MSMEs wait for more than 90 days for payment? So approximately 1/3 of the MSMEs, they have to wait. Approximately half, 1/3 to half of the MSMEs, they wait for more than 3 months to recover their payment, and then letting it go. How many MSMEs let go how much of the payment? So it was found out that every 6 out of 10 MSMEs, हर 10 में से 6 MSMEs अपने टर्नओवर का 5% राइट ऑफ कर रही है हर साल. सो फॉर एग्जांपल, अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ है, तो 1 करोड़ में से 5 लाख रुपए हर 10 में से 6 MSME हर साल राइट ऑफ कर रही है, which is a huge figure, because we all know that in these competitive times the margins are low. Margins उतने ज्यादा नहीं है, और कोई भी अगर बिजनेस 10-15%, 20% का 10-15% का अगर मार्जिन दे रहा है पैट नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, तो इट्स अ ह्यूज मार्जिन. तो अगर टर्नओवर का 5% अगर राइट ऑफ करना पड़ रहा है, तो देन इट इज अ सीरियस प्रॉब्लम, बिकॉज एंड एवरी 6 out of 10 MSME is doing it. Then the most important thing, troublesome customers. Who are the most troublesome customers of the MSMEs? वो कौन से customers हैं जिनकी वजह से सबसे ज्यादा bad debts हो रही हैं? तो it was found out that 42% again of the private sector customers is the biggest troublesome customers of the MSMEs. 24% government and 21% MNCs. तो if we total it, इसका मतलब total 42 plus 24 plus 21, 86% जो MSME की clients हैं, वो MNCs हैं, या तो गवर्नमेंट है या तो बड़े प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज हैं, एंड दे आर द मोस्ट ट्रबलसम कस्टमर्स. दैट मींस कि MSMEs are being taken for a ride, if I can say. Yeah, the customers who have a dominant position, who are big in nature, they misuse their dominant position, and they are the biggest contributor to the bad debts of the MSMEs. सबसे ज्यादा पैसा MSMEs का जो बड़े customers हैं उनकी वजह से रुक रहा है, और वो लोग रुक रहे हैं. So are you is there anybody who has these big customers, big private companies, big listed companies or government companies जिनका पैसा फंसा हुआ है? Sushil ji, the source of this data is, as it is written in the bottom, this was a survey done by the ET magazine, Economic Times magazine, November 19. Okay. So सोचिए ये फिगर्स हैं नवंबर 2019 के, प्री कोविड की हम बात कर रहे हैं.
पोस्ट कोविड आज अगर ये सर्वे किया जाए तो आई एम श्योर कि दिस वुड बी अ बिगर प्रॉब्लम नाउ with so many of the lockdowns and the businesses suffering. So obviously this has become a much bigger problem than what it was pre-COVID, and these are the data which are pre-COVID in November 2019 survey done by ET Magazine. So moving forward, what is the impact? ये जो pending dues का impact है MSMEs पे क्या होता है? The first one, of course, the obvious one is cash flow problems. हमारे पैसे फंसे रहते हैं और वी आर कंटिन्यूअसली, द एमएसएमईज आर कंटिन्यूअसली वर्किंग इन अ कैश फ्लो प्रॉब्लम. उससे वर्किंग कैपिटल की प्रॉब्लम होती है, डे टू डे रनिंग ऑफ बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल अवेलेबल नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली व्हाट इज द नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन? इंक्रीज सीसी लिमिट एंड लोन लिमिट्स. एमएसएमईज को अपनी सीसी लिमिट बढ़ानी पड़ती है, अपनी लोन लिमिट्स बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि उनके पैसे तो उनके कस्टमर्स के पास मैक्सिमम टाइम्स ब्लॉक रहते हैं, रिकवरी टाइम पे नहीं होती है. एंड ये जो 90 दिन तक पेमेंट रिकवर नहीं कर पाती एमएसएमईज. सो मजे की बात ये है कि बैंक्स दे डू नॉट कंसिडर any receivables beyond 90 days to under the drawing power eligibility norms. तो अगर आपकी कोई पेमेंट्स हैं जो तीन महीने के ऊपर के ड्यूज हैं, तो जनरली मोस्ट ऑफ द बैंक्स, स्पेशली प्राइवेट बैंक्स, दे डोंट कंसिडर इट टू कैलकुलेट योर ड्राइंग पावर एलिजिबिलिटी. एंड इन सब चक्करों में सीसी लिमिट लेनी होती है, लोन लिमिट बढ़ानी होती है, तो एमएसएमईज जो होते हैं उनकी फैक्ट्रीज, जो ओनर्स होते हैं, जो डायरेक्टर्स होते हैं, उनकी पर्सनल गारंटीज, उनके घर जनरली मॉर्गेज रहते हैं इन बैंक्स के पास. एंड because of the non-recovery of dues, because of the delayed payments, because of the inability to recover timely, always a lot of focus, time and effort of the MSMEs and the business owners, it's going on the recovery of this money rather in focusing on increasing of sales and profits. And obviously the health life, the family life all goes for a toss, because जब आप काम कर रहे हैं but the payment is not coming, so it takes a toll on your health as well, it takes a toll on your mental health as well, and physical health as well, and the family life also suffers, and the list goes on and on and on. And what is the impact on the business? So MSMEs के पैसे मिले या ना मिले, but the business has to go on, the show has to go on, and as a business owner you still have to pay your salaries, you still have to pay your EMIs, rents, etc. which, and इसीलिए it's important कि MSMEs, business owners अपने funds को arrange करते रहें, ताकि जो cash flow है वो properly चलता रहे, भले पैसे time पे आए नहीं आए. So that is why it is very very important that being a business owner you should know all the provisions and you should be very very strong in these provisions, so that जो बहुत important part है आपके business का, जो सर्विस दी थी, माल बेच दिया, पर पैसे रिकवर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं टाइमली, वो आप सेट कर पाए, एंड ये प्रॉब्लम आपके बिजनेस को टेक ओवर ना कर पाए. So it's very very important to ensure maximum recovery of your own money and in the most seamless manner. Going forward, let's move forward. अब देखते हैं कि हम MSME की बात तो कर रहे हैं कि MSME की डेफिनेशन क्या है. Let's see the definition of MSME. So first of all, I'd like to tell you कि a new definition has been introduced with effect from 1st of July 2020. और MSME, that is micro, small and medium enterprises के गवर्नेंस के लिए गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया है, MSMED Act, that is Micro, Small, Medium Enterprises Development Act 2006. This is the act formulated by the Parliament, by the Central Government of India. So एक पुरानी डेफिनेशन थी जो 30 जून 2020 तक चल रही थी, पर कोविड आने के बाद बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन एंड द कोविड इफेक्ट नई डेफिनेशन ला दी गई है. सो फर्स्ट विल सी द ओल्ड डेफिनेशन, बिकॉज ओल्ड डेफिनेशन के क्राइटेरियाज भी मैटर करेंगे फॉर द रनिंग केसेस, एंड नई डेफिनेशन भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है. So let's first see the old definition. तो जो old definition थी उसमें MSME के लिए इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया बनाया गया था कि आप अगर इस पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड के नीचे आपका इन्वेस्टमेंट है इन योर प्लांट एंड मशीनरी, तो आप माइक्रो कहलाएंगे या स्मॉल कहलाएंगे या तो मीडियम कहलाएंगे. सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज है, अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज है और अगर आपका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 25 लाख के अंदर है, तो आप एक माइक्रो एंटरप्राइज कहलाएंगे. अगर वही इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ के अंदर है तो आप एक स्मॉल एंटरप्राइज कहलाएंगे. अगर वही इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ के अंदर है तो आप एक मीडियम एंटरप्राइज कहलाएंगे. एंड फॉर द सर्विस एंटरप्राइजेस दिस लिमिट वाज अ लिटिल लेसर. आपने इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट, सर्विस में प्लांट एंड मशीनरी होते नहीं, इक्विपमेंट्स होते हैं, वो इन्वेस्टमेंट अगर 10 लाख के नीचे था तो आप एक माइक्रो एंटरप्राइज कहलाते हैं, 2 करोड़ के नीचे था तो आप एक स्मॉल एंटरप्राइज कहलाते हैं, और अगर 5 करोड़ के नीचे था तो आप एक मीडियम एंटरप्राइज कहलाते हैं. बट दिस डेफिनेशन
was in 2006. Obviously, service sector was still picking up, but today service sector contributes almost equally to the manufacturing sector in the GDP of the country. तो service sector और manufacturing sector की ये जो दोनों differences है, इसको हटा दिया गया नई definition में, और industry की एक long drawn demand थी कि why सिर्फ investment का criteria रखा गया है classification के लिए, turnover का criteria क्यों नहीं रखा गया? And there was also a lot of misuse which was happening, and the government authorities को भी data time पे नहीं आ रहा था. So it was a long drawn industry demand की definition को revise किया जाए, because 15 साल हो गए थे, but कोविड आया, उसके बाद फिर गवर्नमेंट ने उसको फाइनली रिवाइज किया. एंड लेट्स सी व्हाट इज द न्यू रिवाइज्ड एमएसएमई क्लासिफिकेशन. तो एज आई सेड, कंपोजिट क्राइटेरिया इंक्लूड किया गवर्नमेंट ने फॉर द फर्स्ट टाइम. इन्वेस्टमेंट के साथ साथ एनुअल टर्नओवर भी लाया, और मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस को एक ही लिमिट पे खड़ा कर दिया. सो अब व्हाट इज दैट रिवाइज्ड लिमिट? सो इफ योर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इज less than 1 crore and your turnover is less than 5 crore, then you are a micro enterprise. If your investment in plant and machinery is less than 10 crores and turnover is less than 50 crores, then you're a small enterprise. Similarly, if your investment in plant and machinery is less than 50 crores and turnover is less than 250 crores, then you're a medium enterprise. Why we have to know this definition? Because बहुत सारे प्रोविजंस है एमएसएमई एक्ट के जो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए हैं, मीडियम के लिए नहीं है. तो इसलिए आपको ये जानना जरूरी है कि आप माइक्रो में आते हैं कि स्मॉल में आते हैं कि मीडियम में आते हैं. एंड एज यू कैन सी फ्रॉम द लिमिट्स कि मीडियम का जो इन्वेस्टमेंट है वो 50 करोड़ तक का होना चाहिए और टर्नओवर 250 करोड़ का होना चाहिए. सो मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज ऑफ इंडिया ऑब्वियसली दे फॉल अंडर माइक्रो एंड स्मॉल कैटेगरी, मीडियम के बाहर आ जाती हैं. एंड ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर दोनों की लिमिट्स को आपको सेटिस्फाई करना जरूरी है. अगर एक की भी लिमिट आपने एक्सीड कर दी तो आप जो अगली कैटेगरी है उसमें आ जाएंगे. फॉर एग्जांपल, अगर आपका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ के नीचे है पर आपका टर्नओवर 50 करोड़ के ऊपर है, तो आप स्मॉल नहीं कहलाएंगे, आप मीडियम कहलाएंगे. सो दैट इज टू बी केप्ट इन माइंड. सो this is the revised classification of the MSME definition. We'll take all the queries at the end of the Deepika ji, I hope I have answered your query. We'll take all the queries at the end of the session so that we can cover everything together. Now, moving forward, having seen the definition of the MSME, what are those three modes which we are discussing? जो मैं I'm making a statement कि there are three modes of payment or recovery of payments for MSMEs other than the civil and criminal remedies. What are those three modes? So the first is the MSMED Act, which जिसके हम provisions अभी देखेंगे. The second is MSME समाधान scheme, जो MSMED Act के अंदर government ने लाई है, which is also very very effective. And the third is Insolvency and Bankruptcy Code 2016. इसके ऐसे provisions हैं इस code के which can help, though it is not a recovery act, they are not recovery provisions, but those provisions can help in making quick recovery if it is an undisputed debt. So we'll see these three modes one by one. So sabse pehle let's check MSMED Act 2006. So what are the most important provisions of the MSMED Act? So section 15 to 24, they cover the most important provisions which helps the MSMEs, MSEs, micro and small enterprise only. ये जो provisions हम अभी देख रहे हैं first mode में, ये सेक्शन 1524 ये माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए है. दिस इज नॉट फॉर द मीडियम एंटरप्राइज. मतलब आपका टर्नओवर 10 करोड़ के नीचे होना चाहिए और आपका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ के नीचे होना चाहिए और आपका टर्नओवर 50 करोड़ के नीचे होना चाहिए. तो ये प्रोविजंस आपके लिए एप्लीकेबल होंगे जो हम अभी बात करने वाले हैं. सो सेक्शन 15 जो बोलता है एमएसएमई एक्ट 2006 का, इट सेज दैट like every buyer who's buying from micro and small enterprise, he has to compulsorily make payment within 45 days. मतलब आप अगर माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज हैं और आपने अगर किसी को कोई गुड्स दिए हैं तो उसको आपको 45 डेज के अंदर आपके कस्टमर को आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा, इररिस्पेक्टिव कि आपकी कॉन्ट्रैक्ट में क्या प्रोविजन है. अगर आपकी कॉन्ट्रैक्ट में 60 डेज है 90 डेज है तो वो वैलिड नहीं होगा. ही हैज टू पे यू विद इन 45 डेज. इट इज मैंडेटरी एंड दिस इन द एक्ट. And so it overrides any other contractual provisions which may be contained in the act. For this, let me show you the Bayer Act. मैं आपको Bayer Act share करता हूँ, which will help you to understand. Bayer Act मतलब जो act, exact act है, I'll share you that. I'll read out from that so that you get a better understanding. It is very important to know the law from the Bayer Act itself. So is my screen visible? Is the Micro and Small Medium Enterprises Act visible on the screen? Please type yes in the chat box if it's visible. Great. I'll just enlarge it. So this is the act and this is the section I'm talking about. As you all can see,
delayed payments to micro and small enterprises. ये chapter 5 है. This is section 15, which says the heading is liability of buyer to make payment. Where any supplier supplies any goods or renders any services to any buyer, the buyer shall make payment thereof on or before the date agreed upon between him and the supplier in writing, or where there is no agreement in his behalf before the appointed day, provided that in no case the period agreed upon between the supplier and the buyer in writing shall exceed 45 days from the day of acceptance or the day of deemed acceptance. What does this mean? कि आपके बीच में अगर कोई अग्रीमेंट है, जैसा कि मैंने कहा, तो वो कोई मैटर नहीं करता. अगर 45 डेज से कम का अग्रीमेंट है तो दैट इज फाइन, पर अगर 45 डेज से ज्यादा के दिन का पेमेंट का अरेंजमेंट आपने अपने बायर के साथ कर रखा है, तो या आपका बायर आपके ऊपर फोर्स कर रहा है, तो यू कैन ऑलवेज टेल देम कि बॉस एक्ट में दिया हुआ है, बिकॉज आई एम अ माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज, तो ये एक्ट में दिया हुआ है कि आपको मुझे 45 दिन के अंदर पेमेंट करना ही करना है. देयर इज नो अदर ऑप्शन, which you can always show them, referring to section 15 of the act. Then there is a very interesting concept of deemed day of acceptance under section 2b. बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम गुड्स या सर्विस सप्लाई कर देते हैं और जब हम अपने बायर के पास, कस्टमर के पास जाते हैं पेमेंट के लिए, तब उसकी आंखें खुलती है और वो बोलते हैं अरे आपने तो माल ठीक से नहीं भेजा था, आपका एक कंसाइनमेंट में गड़बड़ था, एक कार्टून में प्रॉब्लम था, या पूरी क्वांटिटी नहीं थी, या सर्विस में ये डिफेक्ट था, सो ऑन एंड सो फोर्थ. ये सबसे ज्यादा सबसे बड़ा एक्सक्यूज होता है जो जनरली कस्टमर्स लेते हैं. ये किसी के साथ हुआ है क्या? when you go to your customer then and asking for the payment, they come up with some excuse कि there was a defect in the delivery या there was a defect in the service. Yes, so ये जो प्रोविजन है गवर्नमेंट knows it very well. तो इसके लिए डैमेज ड्यूरिंग ट्रांजिट, yes, तो all sorts of excuses. तो इसके लिए गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली सेक्शन 2b ऑफ द एक्ट, उसमें ये लिख दिया है, बोल दिया है कि एक कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया है डीम्ड डे ऑफ एक्सेप्टेंस. और इन शॉर्ट वो क्या बोलता है कि अगर एक एमएसएमई ने आपकी अपने कस्टमर को कोई माल या सर्विस सप्लाई की है और उस कस्टमर ने 15 दिनों के अंदर 15 डेज के अंदर अंदर इन राइटिंग ऑब्जेक्शन नहीं किया है कि आपके माल में डिफेक्ट था या डैमेज था या सर्विस इनकम्प्लीट है, तो 15 दिनों के बाद ही कैन नॉट ऑब्जेक्ट. इट इज अ डीम्ड एक्सेप्टेंस. वो बोल ही नहीं सकता कि आपको मुझे माल आपने मुझे माल गलत सप्लाई किया इसलिए मैं पेमेंट नहीं दूंगा आपको. सो लेट्स सी द एक्ट अगेन. सेक्शन 2b, लेट्स गो टू द एक्ट. दिस इज द एक्ट एंड सी सेक्शन 2b. The day of deemed acceptance means where no objection is made in writing by the buyer regarding acceptance of goods or services within 15 days from the day of delivery of goods or the rendering of services, the day of actual delivery of goods or the rendering of services. इसका मतलब क्या कि 15 दिनों में उसको आपको बोलना होगा कि, और इन राइटिंग बोलना होगा, मुंह जबानी भी नहीं चलेगा कि कोई प्रॉब्लम है उसको आप चेंज करो. तो आपने चेंज कर दिया तो बहुत अच्छा है, पर अगर उसने नहीं बोला है देन इट इज अ डीम्ड डिलीवरी, डीम्ड एक्सेप्टेंस. एंड अगर वो बोलता है 15 दिनों के बाद जब आप पेमेंट मांगने जाते हैं कि कोई प्रॉब्लम थी, देन यू कैन ऑलवेज शो हिम दिस सेक्शन एंड टेल हिम कि बॉस ये डीम्ड डे ऑफ एक्सेप्टेंस हो गया है, आपने उसको 15 दिनों के अंदर मुझे बोलना चाहिए था पर आपने बोला नहीं है, सो नाउ यू कैन नॉट डिले माय पेमेंट जस्ट ऑन दिस ग्राउंड. एंड इट इज इन द एक्ट एंड इट इज बाइंडिंग ऑन ईच एंड एवरी कंपनी ऑफ इंडिया, भले वो सेल जैसी कोई पीएसयू हो या भले वो कोई बड़ी से बड़ी लिस्टेड कंपनी हो, कोई भी हो. अगर आप एक माइक्रो, स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइज हैं तो ये प्रोविजन सेक्शन 2b का आपके फेवर में काम करता है. देन गोइंग फॉरवर्ड, अब गवर्नमेंट ने बोलते हैं कि 45 दिनों में आपके कस्टमर को आपको पेमेंट करना है. नहीं किया तो क्या? अगर आपके कस्टमर ने आपको पेमेंट नहीं किया, देन द बायर, your customer is liable to pay compound interest at 3 times of bank rate notified by RBI. मतलब 3 times of the bank rate notified by RBI, और वो भी compound interest. 45 दिनों के अंदर आपको पेमेंट नहीं मिला, so that is so much of high rate of interest, that too with compound interest, your buyer has to pay you. एंड बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट एक रेट होता है जो आरबीआई फिक्स करती है, जिस रेट पे आरबीआई बैंक्स को लेंड करती है, विच इज जनरली बिटवीन 4.5 to 6 and 6.5%. तो कंपाउंड रेट, कंपाउंड इंटरेस्ट इस केस में 14%, 14 से 18% की तक की रेंज तक चला जाता है. सो हाउ मेनी ऑफ you knew about this provisions ki there is a deemed day of acceptance and there is a compound interest at 3 times of the bank rate of RBI? How many of you knew? हाँ जी रवि जी, ये प्रोविजंस जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट वाले, ये सारे माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए है. सो दिस इज योर राइट, बीइंग अ माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, आपको 45 दिनों में पेमेंट मिलनी है, और अगर नहीं मिली तो आपको 45 दिनों के बाद बैंक रेट के
3 टाइम्स का कंपाउंड इंटरेस्ट आप क्लेम कर सकते हैं। नाउ अब पेमेंट नहीं की, कंपाउंड इंटरेस्ट क्लेम करना है तो कैसे करना है? सो फॉर दिस आल्सो द गवर्नमेंट हैज कम अप विद सेक्शन 18, जो जिसके लिए गवर्नमेंट ने हर एक स्टेट में एक बॉडी बनाई है, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस फैसिलिटेशन काउंसिल, MSCFC इन शॉर्ट, जिसके पास आप जाकर डिस्प्यूट को रिफर कर सकते हो। कैसे रिफर करना है वो हम आगे देखेंगे, पर आप उसके पास कंसलिएशन या आर्बिट्रेशन के लिए भी जा सकते हो, इररिस्पेक्टिव कि आपके बायर के साथ क्या टर्म्स हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप किसी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग को सप्लाई कर रहे हैं किसी टेंडर के अंदर और आप माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत आर्बिट्रेशन की क्लॉजेस वगैरह होते हैं कि उनका कोई एक्स एम्प्लॉय या कोई उनका MD या कोई सीनियर ऑफिशियल आर्बिट्रेटर होगा, कोई भी डिस्प्यूट हो तो वहां जाना पड़ेगा। बट नो, क्योंकि ये एक्ट में दिया गया है, सो सेक्शन 18 के अंदर यू कैन डायरेक्टली गो फॉर आर्बिट्रेशन बिफोर योर स्टेट MSCFC, मतलब जिस स्टेट में आप रजिस्टर्ड हैं एज MSC MSME, आप वहां पर जाकर उनके पास आर्बिट्रेशन के रेफरेंस डाल सकते हैं, एंड जो आपके कॉन्ट्रैक्ट में आर्बिट्रेशन क्लॉज है वो सुपरसीड नहीं करेगा इसको। ये जो MSCFC का आर्बिट्रेशन है वही काम आएगा। और जो आपके कॉन्ट्रैक्ट में आर्बिट्रेशन क्लॉजेस होते हैं, दे आर जनरली वेरी वेरी कॉस्टली। वो आर्बिट्रेटर की फीस, फिर उसको लड़ने की फीस बहुत ज्यादा होती है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। MSCFC के पास आर्बिट्रेशन के जो प्रोविजंस होते हैं, दे आर मच मोर चीपर एंड मच मोर क्विकर। These provisions हम जो बात कर रहे हैं, these are as I said only apply to micro and small enterprises, और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी भी इसके अंदर आएगी क्योंकि वो सर्विस के अंदर आती है। देन आपने अगर आर्बिट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया MSCFC के पास, उनको रेफरेंस दे दिया, उन्होंने उसको ऑर्डर पास भी कर दिया, एंड इट इज अगेंस्ट योर बायर, तो अगर उसको उसकी अपील करनी है, सपोज आपने 1 करोड़ के ड्यूज के लिए उनके अगेंस्ट केस किया, 2 साल पुराने ड्यूज थे, साथ में आपको 25 लाख रुपए इंटरेस्ट भी मिल गया, तो अब अगर आपके बायर को, कस्टमर को अपील करनी है, तो इट इज अ मैंडेट अंडर लॉ कि उसको 75% डिपॉजिट करना पड़ेगा। विदाउट डिपॉजिटिंग 75% दे कैन नॉट फाइल इन अपील। सो इसीलिए बहुत सारे केसेस में जो बायर कस्टमर होते हैं वो बोलते हैं कि यार डिस्प्यूट करने से अच्छा, अपील करने से अच्छा सेटल करके खत्म करो, जो भी प्राइस है कम ज्यादा उसको देकर खत्म करो, एंड ऑब्वियसली यू आर आल्सो हैप्पी बिकॉज नो MSME अननेसेसरी वांट टू फाइट आउट। अगर पेमेंट आता है, कम ज्यादा भी आता है, तो पब्लिक लेके खत्म कर देती है। और अगर आपके अगेंस्ट ऑर्डर आया तो देयर इज नो प्रोविजन ऑफ एनी डिपॉजिट, आप डायरेक्टली उसकी अपील कर सकते हैं। सो विच इज अगेन अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोविजन। और इस प्रोविजन को हम आगे देखेंगे, बहुत बार बड़ी बड़ी कंपनीज ने चैलेंज भी किया है कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है, बट द हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट हैव हेल्ड इट टू बी इन फेवर ऑफ द MSMEs एट ऑल टाइम्स। Then there is another very very interesting provision which the government has made, which is section 22, जिसमें government says कि अगर कोई माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस ने किसी भी कंपनी को, पार्टी को कोई सप्लाई की है, और अगर उस कंपनी ने 45 डेज के अंदर MSC को पेमेंट नहीं दिया है और उसके अकाउंट्स ऑडिट होते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड MSME मिनिस्ट्री ने एक नोटिफिकेशन इश्यू किया है कि अलग अलग नोटिफिकेशन इश्यू किए हैं कि दे हैव टू कंपल्सरीली शो दैट इन देयर ऑडिटेड अकाउंट्स। उनको सेक्शन 22 के अंदर हर एक बायर को जो भी MSME के पेमेंट्स पेंडिंग है, MSE के, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के 45 डेज के ऊपर, या कोई इंटरेस्ट भी पेंडिंग है, पेमेंट हो गया पर इंटरेस्ट बचा है, या पार्ट पेमेंट हो गया और पार्ट पेमेंट बचा है, तो वो जो भी अमाउंट है वो उनको अपने बैलेंस शीट में दिखाना ही दिखाना है। और इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ MSME ने अलग अलग नोटिफिकेशन भी इश्यू किए हैं। लेट मी शो यू व्हाट आर दोस नोटिफिकेशंस क्विकली। इसके लिए MCA ने एक अलग से स्पेशली नोटिफिकेशन करके ये फॉर्म भी बनाया है, देखिए ऑन द स्क्रीन यू हैव दिस, which is a notification dated 22nd of January 2019, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने इशू किया है, स्पेशली फॉर द माइक्रो स्मॉल एज पर द प्रोविजंस ऑफ द MSMED एक्ट, जिसमें ये क्लियरली लिखा हुआ है that every specified company shall file in MSME Form 1 details of all outstanding dues to micro and small enterprises suppliers existing on the date of notification of this order within 30 days, and every specified company shall file a return as per MSME Form 1 by 31st October for the period April to September and by 30th April for the period October to March। मतलब साल में 2 बार हर एक कंपनी को जो MSME में रजिस्टर्ड है, जो ROC में रजिस्टर्ड है, उनको इस पर्टिकुलर फॉर्म को भरना जरूरी है, गिविंग द डिटेल्स की कौन सी माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस का कोई अमाउंट है जो आपने 45 डेज के अंदर नहीं दिया है, अलॉन्ग विद इंटरेस्ट जो पेंडिंग है। एंड इफ दे डोंट फाइल इट, तो इस फॉर्म में लिखा हुआ है attention is drawn to the provisions of subsection 4 of 405 of Companies Act which provide for punishment for any information statistics which is incorrect or incomplete in any material respect।
तो इन शॉर्ट ये सेक्शन ये बोलता है कि अगर किसी कंपनी ने ये फॉर्म नहीं भरा या कोई गलत इंफॉर्मेशन दी तो उसके लिए पनिशमेंट भी है, विच इज इम्प्रिजनमेंट और फाइन। 4-5 साल की इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है और फाइन भी लगाया जा सकता है। तो विच इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोविजन। इसका फायदा क्या है? सिमिलरली मैं आपको एमएसएमई मिनिस्ट्री की भी नोटिफिकेशन दिखाता हूँ। ये रही एमएसएमई मिनिस्ट्री की नोटिफिकेशन। उन्होंने भी ये क्लियर किया है कि अगर 45 डेज के अंदर अंदर पेमेंट नहीं हुआ किसी कंपनी ने, जिसको एमएससी से माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइजेस सप्लाई हुई है, और उसने अगर 45 डेज के अंदर अंदर पेमेंट नहीं किया तो उसको एक हाफ ईयरली रिटर्न फाइल करना पड़ेगा एमसीए के साथ, शोइंग द अमाउंट ऑफ पेमेंट ड्यू एंड द रीजंस एज वेल। सो ये दोनों मिनिस्ट्रीज ने स्पेसिफिक नोटिफिकेशन निकाला हुआ है। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस? द इंपॉर्टेंस इज दिस कि वंस यूर बायर, if he is not paying you, so they have to mandatorily show it in their audited accounts and file this form। और जब वो अपने ऑडिट अकाउंट्स में वो शो कर देते हैं तो इट बिकम्स अ डीम्ड एक्सेप्टेंस। फिर आपको कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर के इस बात को प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि ये पेमेंट ड्यू है कि नहीं है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो लॉ ऑफ लिमिटेशन है, दैट स्टॉप्स अप्लाइंग। वो जिस साल वो अपनी बैलेंस शीट में दिखाएगा जो जरूरी है, तो आपका जो ड्यूज है वो कभी भी लॉ ऑफ लिमिटेशन से कभी पीछे नहीं हटेगा। रिसेंटली अभी पिछले हफ्ते ही सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी आया है जिसमें उन्होंने बोला है कि अगर बैलेंस शीट में कोई कंपनी कोई अमाउंट को दिखा रही है तो लॉ ऑफ लिमिटेशन उस पर अप्लाई नहीं होता और वो आपका चलता रहेगा। दिस इज फॉर पार्टनरशिप फर्म्स ऑल्सो। इट इज फॉर जो मैंने नोटिफिकेशन दिखाया है, जो एमसीए है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो आरओसी में रजिस्टर्ड कंपनीज हैं उनको वो फॉर्म भरना है। और एज पर दी एमएसएमई मिनिस्ट्री नोटिफिकेशन, जितने भी फर्म्स के अकाउंट्स ऑडिट होते हैं उनको अपनी बैलेंस शीट में दिखाना है। तो पार्टनरशिप फर्म्स अगर ऑडिटेड अकाउंट्स में आती है तो उनको भी दिखाना है ये। हाँ जी वरुण जी, अगर 3 साल मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा, 3 साल का लिमिटेशन ऐसे भी एमएससी के लिए अप्लाई नहीं होता है। 3 साल के पहले के भी ड्यूज आप क्लेम कर सकते हैं। दैट इज द गुड थिंग विच द गवर्नमेंट हैज मेड इन फेवर ऑफ द माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। सो गोइंग फॉरवर्ड, सेक्शन 22 हमने देखा, सेक्शन 23 देखते हैं। That's also again a very interesting and a very strong provision। सेक्शन 23 ये बोलता है कि अगर आपके बायर ने आपको ड्यूज नहीं पे किए हैं टाइम पे, सो उनको जो इंटरेस्ट देना है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो हमने देखा, विच इज 3 times ऑफ द बैंक रेट नोटिफाइड बाय आरबीआई, तो उस इंटरेस्ट का डिडक्शन उनको इनकम टैक्स में नहीं मिलेगा। मतलब अगर उसने आपके 100 रुपए की पेमेंट को रोका, जो उसने 2 साल बाद आपको 20 रुपए इंटरेस्ट के साथ पेमेंट किया, कंपाउंड इंटरेस्ट बाय हिमसेल्फ और बाय सम ऑर्डर, तो जो वो 20 रुपए उसने पे किया है उसका डिडक्शन उसको इनकम टैक्स में नहीं मिलेगा, विच इज अ ह्यूज ब्लो। तो अप्रोक्सीमेटली इनकम टैक्स में हम सभी जानते हैं हर कंपनी को खर्चों का 1/3 डिडक्शन मिल जाता है, विच इज द हाईएस्ट रेट ऑफ इनकम टैक्स 33% का। तो जो इंटरेस्ट पे कर रहा है उस पर कोई टैक्स की छूट नहीं मिलेगी। सो व्हेन योर क्लाइंट विल नो ऑल दीज प्रोविजंस, दे विल नेवर वांट टू मेस अप विद यू, दे विल ऑलवेज वांट टू पे यू ऑन टाइम, अगर आपने उनको एक बार दिखा दिया तो ये सब प्रोविजंस। देन सेक्शन 24, एज आई सेड कि सेक्शन 24 ये बोलता है कि ये जो प्रोविजंस है जो हमने देखे सेक्शन 15 to 24, दे ओवरराइड एनी एंड एवरी प्रोविजन ऑफ योर कॉन्ट्रैक्ट जो इस प्रोविजंस के अगेंस्ट हो। मतलब अगर आपने आपके क्लाइंट के साथ कोई एग्रीमेंट कर रखा है जो आपके क्लाइंट के फॉर्मेट के हिसाब से है और उसमें कोई भी ऐसी बात है जो इन प्रोविजंस के अगेंस्ट है, तो वो अप्लाई नहीं करेगी। वो भले आर्बिट्रेशन की हो, या भले वो 90 डेज की पेमेंट की हो, या भले वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट की हो, भले वो बोलता हो कि अगर डिले हुआ तो 6% इंटरेस्ट देंगे, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप एक माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं। तो आपके ये जो एक्ट के प्रोविजंस है वही अप्लाई करेंगे, एंड यू कैन ऑलवेज एनफोर्स दोस प्रोविजंस इन योर फेवर whenever there is a payment which is pending from your clients. So these are the provisions of the MSMED Act. Very short, simple, sweet provisions. If applied correctly, they can work wonders. So do you guys think that these provisions, if you are able, if you're having knowledge, then this will give you better negotiation capability, and it will help you to recover your monies faster? Yes, Siddharth ji, बिल्कुल correct. How to enforce these provisions? We'll see that also. So हम बिजनेस कर रहे हैं और गवर्नमेंट ने हमारे लिए इतने सारे अच्छे प्रोविजंस दिए हैं, हमको क्या इन सभी प्रोविजंस का नॉलेज था पूरा पूरा? प्लीज टाइप यस, एंड इफ नॉट देन प्लीज टाइप नो। ये सारे सर्कुलर्स अवेलेबल हैं शैलेश ऑनलाइन।
करेक्ट. सो मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेस ओनर्स एज राइटली सेड इन प्रोविजंस की जानकारी नहीं है, विच आर इन द इंटरेस्ट, और अगर जानकारी थोड़ी है भी तो इनको हमको कैसे एनफोर्स करना है उसकी जानकारी नहीं है, विच विल सी हाउ वी कैन डू इट. सो सेकेंड मोड पे हम जाते हैं, विच इज एमएसएमई समाधान. हमने एमएसएमई एक्ट की प्रोविजंस देख लिए. नाउ सेकेंड मोड इज एमएसएमई समाधान स्कीम, विच द गवर्नमेंट हैज ब्रॉट अंडर द एमएसएमई एक्ट itself. तो ये एमएसएमई समाधान क्या है? तो एमएसएमई समाधान इज अ पोर्टल विच इज क्रिएटेड बाय द एमएसएमई मिनिस्ट्री, जिसमें ऑल ओवर इंडिया कोई भी माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज, अगेन आई रिपीट, माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज ही, मीडियम नहीं, माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज अपने एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हैं अगेंस्ट एनी ऑफ देयर बायर जिन्होंने 45 दिनों के अंदर पेमेंट नहीं किया है. तो इट इज as simple as filing any simple Google form online. आपको सिर्फ क्या चाहिए? आपको आपके पास आपका उद्योग आधार होना चाहिए जो अब उद्यम हो गया है, मोबाइल नंबर, आधार नंबर आपके पार्टनर या प्रोप्राइटर या डायरेक्टर का, और जो बायर की डिटेल्स हैं, और वर्क ऑर्डर कॉपीज और कॉपीज ऑफ अनडिस्प्यूटेड इनवॉइसेस. ये सब अगर आपके पास है तो 10 मिनट में जाकर आप इमीडिएटली एमएसएमई समाधान पोर्टल के ऊपर, विच इज दिस पोर्टल समाधान.msme.gov.in, वहां पर जाकर आप ये एक एप्लीकेशन अपनी फाइल कर सकते हैं. जिस एप्लीकेशन की कॉपी जैसे आप फाइल करेंगे तो क्या होगा, 15 डेज के अंदर अंदर बायर को एक नोटिस चला जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई से कि भाई सो एंड सो एमएसई ने आपके अगेंस्ट ये एप्लीकेशन फाइल की कि आप इसकी पेमेंट 45 डेज के अंदर नहीं कर रहे हैं. तो क्यों नहीं कर रहे हैं आप ये बताइए. फिर अब एमएसएमई समाधान सेंट्रलाइज पोर्टल बना दिया फॉर द बेनिफिट एंड ईज ऑफ ऑल दी माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस अक्रॉस द कंट्री. पर हर स्टेट में जैसा हमने ऊपर देखा एमएससीएफसी बने हुए हैं, तो आपको हर अपने एमएससीएफसी के साथ एक बार आपने ऑनलाइन फाइलिंग कर दी, ये जानकारी बहुत लोगों को नहीं होती, समाधान पता होता पर ये जानकारी नहीं होती कि ऑनलाइन फाइलिंग करने के बाद आपको अपने स्टेट के एमएससीएफसी के साथ, मतलब माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस फैसिलिटेशन काउंसिल के साथ फिजिकल फाइलिंग करनी है. जो एप्लीकेशन आपने दी है उसको निकालना है, वर्क ऑर्डर्स इनवॉइसेस की कॉपी निकालनी है, उनका एक सिंपल फॉर्म होता है उसको भरना है, और उसके साथ आपको अपने स्टेट के एमएससीएफसी के साथ फाइल करना है. अब एक्ट में ये लिखा हुआ है कि जब भी कोई एमएसएमई समाधान में फाइल करेगा और एमएससीएफसी के पास फिजिकल फाइलिंग कर देगा तो 90 दिनों के अंदर अंदर उसका रेजोल्यूशन एमएससीएफसी को कर देना है. मैक्सिमम 3 मंथ्स के अंदर अंदर उसको रेजोल्यूशन कर देना है. और एमएससीएफसी को ये पावर दी है जो हमने ऊपर देखे कि अगर वो ड्यूज अनडिस्प्यूटेड और एमएससीएफसी बोलता है कि हाँ आपको ये पे करना पड़ेगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट एट द 3 टाइम्स ऑफ द बैंक रेट नोटिफाइड बाय आरबीआई, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ ही एमएससीएफसी उसको ऑर्डर कर सकता है. कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है कि एमएससीएफसी उसको कम कर दे, बोले कि यार 15 की जगह 10 कर दो, कंपाउंड की जगह सिंपल इंटरेस्ट कर दो, नहीं है. कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ ही आपको मिलेगा. और अगर उसकी अपील करनी हो कस्टमर को तो 75% ऑफ डिपॉजिट इज मैंडेटरी. अब पूरे इंडिया में अलग अलग एमएससीएफसीज है. 2006 में ये एक्ट आया जैसा हमने देखा, उसमें ये प्रोविजंस है, पर करीबन करीबन 2018-19 तक सारे स्टेट्स ने एमएससीएफसी अपनी बना ली, तो 10 से 12 साल लगे. बट नाउ टुडे एज वी स्टैंड एवरी स्टेट हैज इट्स ओन एमएससीएफसी. कहीं कहीं एक से ज्यादा एमएससीएफसी भी है जिसके पास जाकर आप जुरिसडिक्शनल एमएससीएफसी के पास ये फिजिकल फाइलिंग कर सकते हैं. 1000 से 3000 रुपए लगते हैं फाइलिंग के, कभी कहीं पैसे लगते हैं, कहीं नहीं भी लगते हैं, और उतने अमाउंट में आप फाइल कर देंगे. एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मैं आपको जो एक फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस वी कैन टेल यू, अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस व्हिच इज नॉट ऑन पब्लिक रिकॉर्ड, कि ये जो गवर्नमेंट इज सो सीरियस फॉर द पेमेंट ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस कि जब भी कोई एमएससी अगर कोई ये क्लेम फाइल करता है किसी पीएसयू के अगेंस्ट या किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अगेंस्ट, तो इमीडिएटली पीएमओ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में एक डेडिकेटेड टीम है जो एमएसएमई समाधान के सारे क्लेम्स को देखती है. और कभी भी कोई पीएसयू के अगेंस्ट कोई क्लेम आता है तो इमीडिएटली उसके एमडी को एक नोटिस चला जाता है कि आपके अगेंस्ट एक माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस ने ऐसा एक क्लेम फाइल किया है, तो क्यों आपने उनका पेमेंट नहीं किया है. एंड द कैबिनेट सेक्रेटरी इज आल्सो सेंट अ नोट एंड ही आल्सो कॉल्स फॉर एन आंसर कि जो भी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री की वो पीएसयू है कि व्हाई सो एंड सो पेमेंट हैज नॉट बीन मेड. सो एमएसएमई समाधान हैज हैड पर्टिकुलर सक्सेस, एक्सट्रीम सक्सेस in recovering of payments against PSUs, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये स्कीम निकाली है और गवर्नमेंट इज वेरी वेरी स्ट्रिक्ट विद इट्स ओन एंटिटीज कि यू शुड नॉट स्टॉप द राइटली ड्यू पेमेंट्स ऑफ द माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस. तो बहुत जल्दी ये होता है पेमेंट PSU से अगर वो अनडिस्प्यूटेड है तो, बिकॉज द एमडी हैज टू रिप्लाई. देन आप अगर 45 दिन के अंदर आपको पेमेंट नहीं मिली, मान लीजिए आपको 100 दिन में पेमेंट मिली, तो आपको पेमेंट तो मिल गई प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट नहीं मिला, तो आप सिर्फ इंटरेस्ट के लिए भी यहाँ पर आ सकते हैं एमएसएमई समाधान के अंदर, और एमएससीएफसी के साथ ऑनलाइन के बाद फिजिकल फाइलिंग कर सकते हैं, तो आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा उस पर. देन द बेस्ट पार्ट,
जैसा किसी ने भी पूछा था, लिमिटेशन एक्ट डज नॉट अप्लाई। 3 साल का जो लिमिटेशन का पीरियड है वो सरकार ने अप्लाई नहीं किया है। क्यों? क्योंकि जो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस होते हैं वो दे आर प्रीटी एट टाइम्स स्मॉल इन साइजेस कंपैरिजन टू देयर कस्टमर्स, तो हर वक्त टाइमली वो नहीं एक्शन ले पाते, तो उसी के लिए लिमिटेशन एक्ट को पूरी तरीके से हटा दिया है। बट द प्रिंसिपल्स ऑफ डिले एंड मैचेस अप्लाई। तो अगर आपका 3 साल तक का क्लेम है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पर 5 साल 7 साल भी है, तो अगर आपने एक ठीक ठाक रीजन बता दिया कि ये प्रॉब्लम था इसलिए मैं नहीं कर पाया, तो आपका क्लेम जनरली एमएससीएफसी अलाउ कर देता है। Somebody saying cannot hear you. Is my voice audible? If somebody can please type yes in the chat box. Am I audible? Okay, Manish, if you can check your speakers. Great. So guys, please pardon me. बहुत सारे questions आ रहे हैं. I promise you we'll take all the questions. I'll take all the questions at the end of the session. एक बार हम पूरा cover कर लेते हैं, फिर we'll take all the questions together. And if required, time अगर override भी होगा तो I'll specially extend for the question and answers only. So this is the provisions for the MSME Samadhan, which is very, very beneficial provision. We'll also see some facts and figures in this. और इसके लिए जैसे मैंने कहा था एक रिक्वायरमेंट है उद्योग आधार या उद्यम की। सो दो दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द डिस्कशन टुडे, बट मैं क्विकली आपको एक बता दूं, अगर आप एक एमएसएमई हैं तो 31 मार्च तक आपको उद्यम में माइग्रेट कर जाना चाहिए था। आप उद्योग आधार के बारे में जानते ही होंगे। उद्योग आधार से उद्यम में अगर नहीं किया है तो आप तुरंत कर जाइए। ये रिक्वायरमेंट इसलिए आया वाइड एंड ऑफिस मेमोरेंडम 6 अगस्त 2020, क्योंकि नई डेफिनेशन आ गई। तो उद्योग आधार पुरानी डेफिनेशन के लिए एमएसएमईज को पूरा लिस्ट डाउन करता था। अब क्योंकि नई क्राइटेरियाज आ गई इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के, तो इसलिए गवर्नमेंट ने एक नया फॉर्म निकाल दिया उद्यम, सो दैट सबकी लेटेस्ट जो टर्नओवर की और इन्वेस्टमेंट डिटेल्स है वो सारी की सारी रिकॉर्ड पे आ सके। माइग्रेट करना बहुत आसान है। आई हैव गिवन दिस लिंक हियर, आप यहां जाकर माइग्रेट कर सकते हैं इजिली, udyamregistration.gov.in। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, फ्री है, बहुत सिंपल है, फ्री है, सिर्फ आपको वहां डेटा भरना है गवर्नमेंट की वेबसाइट से। पर प्लीज बी अवेयर कि बहुत सारी फेक साइट्स ऐसी आ गई हैं जहां पर रजिस्ट्रेशन जो है वो चार्जेबल बेसिस पे शिफ्ट किया जा रहा है। सो दे आर प्राइवेट फेक साइट्स, प्लीज डू नॉट गो ऑन दैट, क्योंकि माइग्रेटिंग इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट एंड यू कैन इजीली डू इट ऑन योर ओन। There is no institution or consultant who has been authorized by the government to do it. So please be aware of that particular aspect. Now we have seen the provisions of the MSME Act and we have also seen the provisions of the MSME Samadhan. Ab, what is the third mode which we have been discussing? So third mode of recovery of money is Insolvency and Bankruptcy Code 2016. Though, as I said, IBC code, which it's famously called, ये कोई recovery provision नहीं है, बट ये इसके जो कुछ प्रोविजंस है वो इतने स्ट्रॉन्ग है, इफ यू आर इम्प्लीमेंटिंग इट प्रॉपर्ली देन यू कैन इजीली रिकवर योर मनी क्विकली, अगर वो अनडिस्प्यूटेड है तो। सो व्हाट आर दोस प्रोविजंस? सो इन शॉर्ट सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाता हूँ कि आईबीसी में एक सेक्शन है जो ये बोलता है, अगर आपका क्लाइंट जो है वो एक कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड है या एलएलपी है, और उसने आपको अगर पेमेंट नहीं किया हुआ है, मोर देन 1 लाख का अगर आपका ड्यू है, अच्छा इस 1 लाख में आपके इंटरेस्ट भी आएंगे, आपके एसडी भी आएंगे, सिक्योरिटी डिपॉजिट वगैरह भी आएगा, जो अब 1 करोड़ हो गया है, which we'll just discuss। तो अगर आपको उसने 1 लाख के ऊपर का पेमेंट नहीं किया है तो आप एक ऑपरेशनल क्रेडिटर बन जाते हैं उसके, और आपको उसको एक सिंपल फॉर्मेट में नोटिस भेज देना है कि सो एंड सो अमाउंट इज ड्यू फ्रॉम यू टू मी विच यू हैव नॉट पेड, ये उसका वर्क ऑर्डर है, ये उसका इनवॉइस है, आप मेरे को वो पेमेंट कर दीजिए। अगर उसने, विच इज कॉल्ड अ फॉर्म 3 डिमांड नोटिस, अगर आपके क्लाइंट ने, जो एक प्राइवेट लिमिटेड है या पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, उसने अगर आपको 10 दिन के अंदर पेमेंट नहीं किया, then immediately on the 11th day you can go ahead and file a petition against your client for its insolvency। इंसॉल्वेंसी का मतलब आप जो भी जुरिसडिक्शनल एनसीएलटी है, दैट इज नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, वहां पर आप पिटिशन फाइल कर सकते हैं अपने क्लाइंट के अगेंस्ट कि सो एंड सो कंपनी हैज नॉट पेड मी 1 लाख रुपीस या मोर देन 1 लाख रुपीस, व्हाटएवर इज द अमाउंट, एंड दिस इज द वर्क ऑर्डर एंड द इनवॉइसेस कॉपीज व्हिच आर अनडिस्प्यूटेड, एंड डिस्पाइट गिविंग द नोटिस उन्होंने हमको पेमेंट नहीं किया है, तो इसको इंसॉल्वेंट कर दिया जाए। व्हाट इज रिक्वायर्ड कि इनवॉइस हो, एक्सेप्टेंस ऑफ बायर हो, एक्सेप्टेंस से मतलब कि डिस्प्यूटेड ना हो वो, और हमने ऊपर देखा है डीम डे ऑफ एक्सेप्टेंस, 15 डेज में अगर उसने आपको डिस्प्यूट नहीं किया इन राइटिंग, तो यू कैन ऑलवेज रिलाई ऑन दैट प्रोविजन कि 15 दिनों में इन्होंने मुझे कभी डिस्प्यूट नहीं किया था। तो अब ये इंसॉल्वेंसी पिटीशन फाइल करने का इफेक्ट क्या होगा? तो अगर आपके क्लाइंट के अगेंस्ट इंसॉल्वेंसी पिटीशन आपने फाइल कर दी और ये 3 कंडीशन एग्जिस्ट करती हैं कि अमाउंट जो है वो 1 लाख से ऊपर है, इनवॉइस है, अनडिस्प्यूटेड है, तो एनसीएलटी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है अदर देन टू एक्सेप्ट योर पिटीशन।
और अगर एनसीएलटी ने आपकी पिटीशन एक्सेप्ट कर ली तो इमीडिएटली आपके क्लाइंट के कस्टमर के अगेंस्ट एक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट हो जाएगा, जो भी आपका डिफॉल्टिंग कस्टमर है। और रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट हो गया मतलब ऑल द पावर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ योर क्लाइंट विल स्टैंड विथड्रॉन। जो आपका कस्टमर है वो अपनी कंपनी के पूरे मैनेजमेंट पावर्स को लूज कर जाएगा। दैट मीन्स ही कैन नॉट इवन साइन अ चेक। ना वो एक चेक इश्यू कर पाएंगे, ना ही वो एक परचेज ऑर्डर इश्यू कर पाएंगे, ना ही एक वो सेल्स ऑर्डर एक्सेप्ट कर पाएंगे, वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और एक थर्ड पार्टी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो एक बंदा होता है वो पूरी कंपनी को टेक ओवर कर लेता है एनसीएलटी के सुपरविजन में, और वो पूरे ऑपरेशंस रन करता है। सो डू यू थिंक एनी ऑफ your customers or any company will ever want to lose control just because of non-payment of a due as low as 1 lakh, and especially which is undisputed? Please type yes if you agree that nobody would want to lose control of their companies for non-payment to their vendors for dues which is as low as 1 lakh. So that is the effect कि अगर अनडिस्प्यूटेड ड्यू है और आपने अगर एनसीएलटी के पास फाइल कर दिया है, सो कोई भी कंपनी नहीं चाहती कि उसका पावर पूरा खत्म हो जाए। और अगर ये आरपी अपॉइंट हो गया ना, तो आरपी अपॉइंट होने के बाद अगर वो सेटल नहीं हुआ तो फिर एक रेजोल्यूशन स्कीम बनानी होती है जिसमें फिर बिडर्स को बुलाया जाता है। सो इट इज अ पॉसिबिलिटी कि वो कंपनी ही खो दे पूरी, और बिडर्स को बुला करके उस कंपनी का की फिर ऑक्शन की जाती है, और एज पर द रेजोल्यूशन प्लान विच इज प्रिपेयर्ड। सो as soon as you file it and the NCLT accepts it, so majority of the times the customer company they come and settle the amount. ये भेल के साथ ऐसा हुआ था एक केस में, करीबन 15-16 लाख पेंडिंग थे, और उनके अगेंस्ट जब फॉर्म 3 इश्यू किया गया तो जैसे ही उनको फॉर्म 3 इश्यू किया गया वैसे ही वो आकर इमीडिएटली उन्होंने सेटल कर लिया, बिकॉज दैट ड्यू द पेमेंट वाज अनडिस्प्यूटेड। वो उनको देना ही था बट बिकॉज ऑफ सम रीजन वो दे नहीं रहे थे। बट एज सून एज दे गॉट द फॉर्म 3 एंड दे रियलाइज कि दे हैव टू पे इट एनी विच वेज, सो दे इमीडिएटली क्लोज जो कई महीनों से पेंडिंग पड़ा हुआ था। So that is the power of the IBC provision, and the big companies, the private limited companies, and the big public limited companies, they take it very, very seriously, because this is a very, very टफ एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है, बट जो बड़ी कंपनीज है उनको इसके आफ्टर इफेक्ट्स पता है। आपने आईबीसी के बारे में बहुत सारी पेपर में न्यूज पढ़ी होगी, इंफॉर्मेशन पढ़ी होगी, कभी आपने सुना होगा कि किसी ने किसी कंपनी को टेक ओवर कर लिया, बैंक चलेगी किसी कंपनी अगेंस्ट आईबीसी में, तो यू मस्ट बी वंडरिंग कि आईबीसी है क्या। तो ये आईबीसी डेफिनेटली एक कोड है जो 2016 में आया, विच इज रियली हेल्प इंडिया to get on in the world map of ease of doing business। पर इसमें ऐसे प्रोविजंस भी हैं जो एक छोटे बिजनेस ओनर को, एक एमएसएमई को, भले आप एक ट्रेडर हो, भले मैन्युफैक्चरर हो, भले एक सर्विस प्रोवाइडर हो, आप मीडियम एंटरप्राइज है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो प्रोविजन है आईबीसी का, जैसे मैंने कहा, ये हर किसी के लिए है। बस एक ही चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपका जो अपोजिट पार्टी है वो एक प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो, या तो एक एलएलपी हो, और आपका ड्यू 1 लाख हो। एंड एज आई सेड कि अब वो 1 करोड़ हो गई है। तो ये चेंज क्या है, ये 1 करोड़ ये है कि जब ये कोविड आया तो 25 मार्च 2020 को जब हम नेशन वाइड लॉकडाउन में गए थे, फर्स्ट लॉकडाउन में, तो उस दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इमीडिएटली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक नोटिफिकेशन निकाला था, ऑनरेबल सीतारमन जी ने, कि ये 1 लाख की जो लिमिट है ये बहुत कम है, लॉकडाउन हो गया है, मेजोरिटी ऑफ द कंपनीज डिफॉल्ट करेंगी, तो इसको बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया जाए, नहीं तो अंबार लग जाएगा, बाढ़ आ जाएगी इंसॉल्वेंसी पिटीशंस की। इसलिए उन्होंने 1 लाख की लिमिट को बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया। पर जो 25 मार्च 2020 के पहले के डिफॉल्ट्स हैं वो आज भी 1 लाख की लिमिट से ही माने जाएंगे, और 25 मार्च 2020 के बाद के जो डिफॉल्ट्स हैं उसके लिए लिमिट अभी 1 करोड़ है। 1 साल के लिए लिमिट ये बढ़ाई गई थी जो 24 मार्च 2021 को खत्म हो गया, पर ये लिमिट जो है ये अभी कम नहीं की गई है। होपफुली इन द नियर फ्यूचर इस लिमिट को वापस रिवाइज करके कम कर दिया जाएगा, शायद 1 लाख पे ना लाए वापस गवर्नमेंट, पर वी आर एक्सपेक्टिंग कि 5 लाख या 10 लाख पे ले आए, जिससे कि जो मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस कंपनीज हैं उनके बेनिफिट में ये चलता रहे। तो पर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज 25 मार्च 2020 के पहले के ड्यूज अभी भी 1 लाख से ही काउंट होंगे, और 25 मार्च 2020 के बाद के ड्यूज 1 करोड़ की लिमिट से काउंट होंगे, वो आपको ध्यान रखना है। तो जो एक कंडीशन 1 लाख का था वो 25 मार्च 2020 तक होगा, 25 मार्च 2020 के बाद का कोई डिफॉल्ट है तो उसको 1 करोड़ की तरह आपको देखना होगा, और उस 1 करोड़ में आप इंटरेस्ट भी जोड़ सकते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट वगैरह कुछ है तो उसको भी जोड़ सकते हैं, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। और इस केस में लिमिटेशन अप्लाई होता है, ये आपको ध्यान रखना है। एमएसएमई के एक्ट में लिमिटेशन अप्लाई नहीं होता, वो सिर्फ माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए है। आईबीसी के केस में 3 साल का लिमिटेशन अप्लाई होता है। सो दिस इज द
this is the third method which we wanted to discuss, which is again a very very powerful method. And these are the three ways which, if used properly, they can help you to recover a lot of your dues on your own. क्योंकि इनको implement करना बहुत कठिन नहीं है, सब चीजें easy हैं, बहुत सारी चीजें online हैं. आप अगर फॉर्मेट को समझ जाए और आपको प्रॉपर नॉलेज है तो आप खुद ही करके स्टेज 1 स्टेज 2 तक तो खुद ही कर सकते हैं. तब तक भी आपके पैसे नहीं आते. जनरली स्टेज 1 स्टेज 2 में 50% ऑफ द ड्यूज आ जाते हैं. अगर उसके बाद नहीं आते, देन यू कैन गो फॉर एन एक्सटर्नल एडवाइस. पर काफी हद तक आप खुद ही यू कैन अप्लाई दीज प्रोविजंस. बट डिस्पाइट बीइंग सो स्ट्रॉन्ग प्रोविजंस व्हिच हैज बीन मेड, there are few limitations of law and system hurdles, as we all know, which is always is, because of which the success has not been so high. So MSME Act जो हमने पहला प्रोविजन देखा था, पहला मेथड देखा था, उसकी क्या लिमिटेशंस है? जैसा कि बहुत सारे लोगों ने कहा, मैंने आज के कितने लोगों को पता था कि ऐसे प्रोविजन एग्जिस्ट करते हैं. लैक ऑफ अवेयरनेस, इसका नॉलेज नहीं है लोगों को कि ऐसे कोई प्रोविजंस एग्जिस्ट भी करते हैं. तो जब नॉलेज ही नहीं है तो फिर उसको कैसे वो इंप्लीमेंट कर पाएंगे? एंड सेकेंड, नॉलेज अगर है भी तो उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है वो नहीं पता. ये प्रोविजंस एग्जिस्ट करते हैं, बट हाउ डू आई इंप्लीमेंट इट, आई डोंट नो. दैट इज व्हाई इट इज नॉट हेल्पिंग मी. इन्हीं रीजंस, इन्हीं सबसे दो बड़े रीजंस की वजह से, लैक ऑफ अवेयरनेस एंड लैक ऑफ नॉलेज हाउ टू इंप्लीमेंट इट, इन दो कारणों से जो एमएसएमई एक्ट है, जो इतना पावरफुल एक्ट है, इतने पावरफुल प्रोविजंस है, दैट हैज रिमेन्ड लाइक अ पेपर टाइगर और अ टूथलेस टाइगर. वो उतना इफेक्टिव नहीं हो पाया है क्योंकि जनता में इसके अवेयरनेस नहीं है. और अवेयरनेस है तो जैसा कि बहुत सारे लोगों ने अभी चैट में पूछा हुआ है, विच विल डिस्कस, कि हमको पता था पर इंप्लीमेंट कैसे करें वो नहीं पता था. तो विल डिस्कस दैट ऑल्सो. सेकेंड, कि एमएसएमई समाधान स्कीम हमने देखी, इतनी पावरफुल स्कीम है. ऑनलाइन फाइल कर दो और मिनिस्ट्री से ईमेल चला जाता है बायर को 15 दिनों के अंदर. तो ये भी बहुत हद तक उतनी इफेक्टिव नहीं हो पाई है. काफी इफेक्टिव हुई है, विच विल सी द फिगर्स, पर बहुत इफेक्टिव नहीं हो पाई है. उसके कुछ कारण है. उसका ये कारण है कि ये सिर्फ ऑनलाइन फाइलिंग नहीं है, पर ये ऑफलाइन फाइलिंग भी है, और वहां पर दिक्कत हो जाती है. ऑनलाइन फाइलिंग करना बहुत आसान है कि बायर की डिटेल्स निकाली, वर्क ऑर्डर निकाला, इनवॉइस निकाला और उसको चढ़ा दिया, फॉर्मेट है उसको भर दिया पैन एप्लीकेशन की तरह, और वो आगे बढ़ गई पूरी. पर जहां ऑफलाइन फाइलिंग की बात आती है तो अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग एमएससीएफसीज है, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस फैसिलिटेशन काउंसिल, और हर एक स्टेट के एमएससीएफसी का थोड़ा बहुत फॉर्म डिफर करता है, या कोई रूल डिफर करता है, प्रैक्टिस डिफर करती है. तो लोगों को पहली बात ये नहीं पता कि इसकी ऑफलाइन फिजिकल फाइलिंग भी करनी है. पता चलता है तो फिर कहाँ करनी वो नहीं पता होता, कहाँ करनी वो पता होता है तो फिर कैसे करनी वो पूरी तरीके से पता नहीं होता. जहां पर बहुत दिक्कत आती है, जिस वजह से बहुत सारे एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो जाते हैं बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट फाइलिंग और रॉन्ग फाइलिंग. फिर फाइलिंग होने के बाद कंटिन्यूअस फॉलोअप की जरूरत होती है. क्यों होती है वो मैं आपको बताता हूँ. कि जो एमएससीएफसी है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी तो है, पर ये फुल्ली गवर्नमेंट बॉडी की तरह काम नहीं करती. मतलब कि माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज फैसिलिटेशन काउंसिल का जो कंपोजिशन है वो मिक्स है. उसमें गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं जो उसको हेड करते हैं, पर साथ साथ कोई एमएसएमई एसोसिएशंस है तो उसके मेंबर्स को भी अपॉइंट किया जाता है, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के मेंबर्स को भी अपॉइंट किया जाता है. तो ये एक मिक्स बॉडी होती है जो ऑलरेडी अपने अलग अलग, ये लोग जो होते हैं अपनी पोजीशंस और कामों में होते हैं. तो ये बॉडी हर वक्त वहां बैठती नहीं है, ये महीने में एक बार या दो बार मिलती है. तो इसकी वर्किंग जो होती है वो थोड़ी स्लो चलती है, काफी स्लो चलती है. और बहुत सारे लोगों को ये कंप्लेंट होती है कि वो फाइल करते हैं पर कोई जवाब ही नहीं आता. वो इसलिए नहीं आता क्योंकि ये बॉडी जो है ये कभी कभी मिलती है, बहुत स्लो चलती है, प्लस रेड टेपिज्म चलता है क्योंकि फुल टाइम कोई वहां पर सीनियर ऑफिसर्स नहीं होते. तो अपनी मनमर्जी से जो छोटे लेवल के ऑफिसर्स होते हैं वो वहां पर क्लर्क वगैरह काम चलाते रहते हैं. तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अगर कुछ फाइलिंग कर रहे हैं तो उनसे कंटिन्यूस फॉलोअप्स करिए, उनसे पूछिए कि मैंने ये फाइल किया है, इसका क्या हुआ, कोई डिफेक्ट है तो बताओ, या हियरिंग कब आएगी. तो आपकी फाइल आगे बढ़ती रहती है. थर्ड, कि 90 डेज का एक रेजोल्यूशन का टाइम दिया है, जो हमने देखा कि अगर एमएससीएफसी के पास फाइल हुआ है तो 90 डेज के अंदर उसको ये रिजोल्व करना ही करना है. पर बहुत बार ऐसा होता है कि 90 डेज में ये रिजोल्व हो नहीं पाता क्योंकि बॉडी मिलती नहीं है. मिलती तो केसेस इतने सारे फाइल होते हैं कि वो उसको कर ही नहीं पाती. तो वो 3 महीने की जगह 6 महीने, 9 महीने, साल भर भी लग जाते हैं, which still I think is not a bad thing. क्योंकि आप सिविल कोर्ट में जाएंगे तो ऑब्वियसली वी नो कि 6 महीने, साल भर में जरूरी नहीं कि हमारा रेजोल्यूशन आ जाए, समय उससे लंबा ही लगता है. तो इसीलिए
जो 90 दिन की समय सीमा है वो अगर 6 महीने में जाती है तो भी गोइंग बिफोर एमएससीएफसी इज अ गुड थिंग, बट जो एक स्टैट्यूटरी मैंडेट है 90 दिनों के अंदर ऑर्डर पास करने का, वो पूरा नहीं हो पाता। थर्ड, हम जो लिमिटेशन देखते हैं, फिर एमएससीएफसी की तरफ से कम्युनिकेशन भी जो होता है वो बहुत डिले होता है। एक्यूरेट फाइलिंग की वजह से बहुत सारे फाइल्स रिजेक्ट हो जाते हैं। और जो ये स्कीम सेंटर ने बनाई है पर डिफरेंट स्टेट के डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं, जिसकी वजह से जो एसएससीज है, जो एमएसएमईज है, वो प्रॉपरली उसको फाइल नहीं कर पाते और एक्यूरेसी नहीं ला पाते अपनी फाइलिंग में, जिस वजह से ये स्कीम उतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई है जितनी की हो सकती है। स्टिल इट हैज अचीव्ड सब्सटेंशियल सक्सेस व्हिच विल सी नाउ। फिर उनके ऑर्डर्स बहुत डिले आते हैं। अच्छा, अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एमएससीएफसी में आपने फाइल कर दिया, ऑनलाइन भी कर दिया, फिजिकल भी कर दिया, और आपकी हियरिंग भी हो गई और आपको ऑर्डर भी आ गया, तो अगर सेटलमेंट हो गया, जो 50% केसेस में हो जाता है, तो बहुत अच्छी बात है। पर अगर सेटलमेंट नहीं हुआ तो उसके ऑर्डर को एग्जीक्यूट कराना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि फिर उसके लिए आपको वापस सिविल कोर्ट में जाना होता है। सिर्फ 3 ही स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर आपको सिविल कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, एमपी, बिहार एंड झारखंड। वहां पर अगर कोई एमएससीएफसी का ऑर्डर है आपके फेवर में, तो आप उसको रिकवरी ऑफ लैंड रेवेन्यू की तरह जो कलेक्टर या तहसीलदार होता है उनके पास एप्लीकेशन करके आप रिकवरी करवा सकते हो। बट बाकी सभी जगह इट इज ट्रीटेड लाइक एन ऑर्डर ऑफ सिविल कोर्ट, इट डिग्री ऑफ सिविल कोर्ट, और आपको सिविल कोर्ट में जाकर उसको एग्जीक्यूट कराना होता है, जो फिर अपने आप में एक थोड़ा लॉन्ग ड्रॉन और टाइम कंज्यूमिंग एंड एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसीडिंग हो जाती है। So maybe in near future we have made representations at times, a lot of different associations also, right? और आप भी अगर किसी एसोसिएशन के मेंबर हैं तो कुछ ऐसे रिप्रेजेंटेशन बनाकर गवर्नमेंट को दे सकते हैं कि क्यों ऑफलाइन की जरूरत है, जीएसटी और इनकम टैक्स की तरह क्यों ये पूरा ऑनलाइन नहीं हो सकता, क्यों यहाँ पर एग्जीक्यूशन कराने की जरूरत है, अगर एक एमएससी के फेवर में ऑर्डर आ गया तो क्यों ये रिकवरी ऑफ टैक्स की तरह तुरंत रिकवर नहीं हो सकता, अगर वो पेमेंट नहीं कर रहा है बैंक अकाउंट क्यों नहीं अटैच हो सकते, सो एंड सो प्रोविजंस व्हिच विल हेल्प दी माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस ऑफ द कंट्री, व्हिच होपफुली विल कम। थर्ड जो हमने मेथड देखा, उसकी क्या लिमिटेशंस है, आईबीसी कोड की। आईबीसी कोड की अगेन सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि जो हमने प्रोविजंस देखे कि 1 लाख के ऊपर अगर आपका ड्यू नहीं हुआ है तो आप उसको पेमेंट करके, अगर उसने पेमेंट नहीं किया है तो आप उसको फॉर्म 3 का डिमांड नोटिस भेज सकते हैं, नहीं तो फिर इंसॉल्वेंसी पिटीशन फाइल कर सकते हैं। इसका नॉलेज नहीं है लोगों को इसके बारे में पता नहीं है कि ऐसा प्रोविजन एग्जिस्ट करता है। एवरीबडी थिंक्स आईबीसी इज अ वेरी बिग एक्ट फॉर बिग कंपनीज, फॉर बिग बैंक्स टू रिकवर बिग ड्यूज। ऐसा नहीं है, 1 लाख जितना छोटा अमाउंट भी आप आईबीसी में जाकर इजिली रिकवर कर सकते हैं। और सेकेंड, ये जो 1 लाख की लिमिट है, ये कोविड की वजह से 1 करोड़ कर गई है, which is again a limitation, which is again एक हर्डल है, which hopefully will be reduced soon, but because of COVID this has been increased। तो बहुत सारे जो ड्यूज हैं जो इजिली रिकवर हो सकते थे 50, 60, 70, 80 लाख के भी, वो इतने बड़े बड़े अमाउंट्स भी अभी आईबीसी से बाहर हो गए हैं फॉर द पीरियड आफ्टर 25 मार्च 2020। और उसके पहले के ड्यूज जो है वो भी 1 लाख में आते हैं और उसमें अभी भी आप आईबीसी में जा सकते हैं। सो despite these limitations, despite the limitations which we have discussed, the success rate of the MSMED Act and the MSME Samadhan is pretty high। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये कुछ डेटाज हैं जो हमने यहाँ डाले हैं, और ये डेटा सारे के सारे जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है MSME समाधान पोर्टल, वहां पर है। आप जाएंगे तो वहां आपको ये डेटा दिखेगा कि which says कि today till date there has been 57,000 applications which has been filed by the micro and small enterprises under MSME समाधान। अब इस 57,000 एप्लीकेशंस में से आप ये देखेंगे यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 24,000 पेंडिंग है जो अभी भी एमएससीएफसी ने देखी भी नहीं है। दे आर येट टू बी रिव्यूड, सॉरी, they are yet to be reviewed, and approximately 14,500 they are currently under consideration। मतलब this 24 plus 14 approximately 38,000 applications are still pending। so आप इस 57,000 में से 38 को हटा दीजिए, approximately 19,000 बचता है। इस 19,000 एप्लीकेशन में 9,700 एप्लीकेशन, करीबन 10,000 एप्लीकेशन they have been rejected by MSCFC council, and as I said majority of the applications are rejected because of improper filing। मतलब जो 19,000 एप्लीकेशन जो आज तक डिस्पोज हुई हैं उसमें से अप्रोक्सीमेटली 50% तो बिकॉज ऑफ रॉन्गफुल फाइलिंग ही रिजेक्ट हो गई है। किसी में फीस नहीं गई, किसी में वर्क ऑर्डर नहीं गया, किसी में प्रॉपर फॉर्मेट नहीं गया, किसी में इनवॉइस नहीं गया, इस वजह से रिजेक्ट हो गई। पर अब जो बचती है बाकी की अप्रोक्सीमेटली 9-10 हजार, उस 9-10 हजार में से 4,000 एमएससीएफसी ने प्रॉपर ऑर्डर करके डिस्पोज की है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली
5,000 एप्लीकेशंस म्यूचुअल सेटलमेंट हो गई। तो फिगर क्या बचा था इस 57 में से? 57 में से ये 38 चला गया जो पेंडिंग है, 19,000 बचा। 19 में से करीबन 9,700 रिजेक्ट हुई हैं, पर जो बाकी 9,000 बची उसमें से जो डिस्पोज हुई है प्रॉपर, उसमें से 5,000 सेटलमेंट में चली गई। मतलब द रेट ऑफ सेटलमेंट अंडर एमएसएमई समाधान, इफ यू सी इट माइन्यूटली, इज ऑलमोस्ट 50%। अगर आप एमएसएमई समाधान में गए और प्रॉपर आपने उसको फाइलिंग की, तो देर इज अ वेरी गुड चांस, 50% चांस कि आपका बायर टेबल पे आके सेटलमेंट करके क्लोज कर देगा उसको, रेदर देन डिस्प्यूटिंग इट एंड फाइटिंग इट। क्योंकि वो जितना लड़ेगा उतना उसके अगेंस्ट जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, अपील करेगा तो 75% देना पड़ेगा, एंड देयर इज नो डिस्क्रिशन व्हिच कैन बी टेकन केयर। दैट इज व्हाई, एंड देयर आर अमाउंट्स गिवन आल्सो। टोटल 17,000 करोड़ रुपए इन एप्लीकेशंस में इन्वॉल्व है अभी तक। जो सेटलमेंट हुई है वो अभी तक करीबन 800 करोड़ रुपए के सेटलमेंट हो चुके हैं। जो ऑर्डर्स हुए हैं वो भी करीबन 800 करोड़ के ऑर्डर्स हो चुके हैं। सो दिस शोज दैट एमएसएमई समाधान कैन बी वेरी वेरी इफेक्टिव if you are able to implement it properly and if you are able to apply it properly, which is very very easy, and the government has made it in such a way कि आप खुद ही कर पाए। एमएससी के पास रिसोर्स नहीं होते कि वो हर केस के लिए जाकर लाख 2 लाख रुपए के लिए भी किसी को हायर करके ये काम करवा पाए। तो उतना सिंपल प्रोविजन है जो हम अभी देखेंगे आप कैसे कर सकते हैं। नाउ ये वो देखा हमने एमएसएमई समाधान और एमएसएमई एक्ट के अंदर सक्सेस रेट। अब आईबीसी में हम देखते हैं कि आईबीसी आने के बाद, जैसा मैंने कहा कि जब से 2016 से आईबीसी आया है, 4 सालों में ही जो इंडिया की ईज ऑफ बैंकिंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग है वो 142 से 63 आ गई। व्हाई? बिकॉज आईबीसी हैज एंश्योर्ड प्रोटेक्शन ऑफ कैपिटल फॉर द इन्वेस्टर्स इन इंडिया। रिकवरी बहुत आसान हो गई, कैपिटल का प्रोटेक्शन हो गया, तो जो बड़े बड़े बैंक के एनपीएस थे वो क्लियर होने लगे। एनपीएस जो थे, नॉन परफॉर्मिंग अकाउंट्स, वो 12 लाख करोड़ से 4 सालों में 6 लाख करोड़ में आ गए। जैसा कि आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनीज दे स्टार्टेड पेइंग देमसेल्व्स, बैंक के पास आकर सेटलमेंट करने लगी, जो पहले विलफुल डिफॉल्टर्स थी, जो खुद ही पैसा नहीं दे रही थी। सो दैट हैज रियली हेल्प्ड एंड दैट शोज द स्ट्रेंथ ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द आईबीसी। अगर इसको प्रॉपरली अप्लाई किया गया, so this can really help in recovering of your money in the right manner, in the quick manner. Now कुछ केस स्टडीज हम भी देख लेते हैं। अभी तक तो हमने ये बात कर ली, थ्योरी प्रोविजंस बता दिए आप लोगों को, तो कुछ सक्सेस स्टोरी क्या है, जो लाइफ सक्सेस स्टोरी। ये जो ऑर्डर्स हैं ये सारे ऑनलाइन अवेलेबल हैं, यू कैन चेक इट। सो देयर वाज दिस केस ऑफ महालॉयज प्राइवेट लिमिटेड ओडिशा वर्सेस श्री मेटेलिक्स, जिसमें उनका जो भी सप्लाई थी, प्रिंसिपल अमाउंट 12.5 लाख पेंडिंग था। उन्होंने एमएससीएफसी में क्लेम फाइल किया। वो 12.5 लाख का ऑर्डर तो हुआ, उसके साथ साथ उनको 22.5 लाख का इंटरेस्ट भी मिला। मतलब 12.5 लाख प्लस 22.5 लाख, करीबन करीबन 35 लाख रुपए का ऑर्डर उनके फेवर में हुआ, जो एमएससीएफसी उड़ीसा ने उनके फेवर में किया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट देखिए कितना बढ़ जाता है। व्हाट इज द पावर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट? Then we also know about a case which is was against a big listed company. It was a big group company of a big listed conglomerate, or an MSC has supplied to it, and there's a good amount, whooping amount of 10-12 crores which was pending against them, and वो उस MSC ने केस फाइल किया MSCFC में अंडर द MSME समाधान, और फाइलिंग वगैरह हुई प्रॉपर। सो the problem with the this big listed conglomerate group company was that they were under tremendous financial difficulty, इसलिए वो पेमेंट नहीं कर पा रहे थे। So when the case came against them, so they made all possible attempts कि वो केस डिले हो जाए, या जो MSCFC है वो उस पे ऑर्डर ना करे, या उसके मेंबर्स बदल जाए। They made all possible efforts, पर क्यों? क्योंकि अगर वो केस हियरिंग पे आकर ऑर्डर होता तो उनके अगेंस्ट क्यों ना था, बिकॉज देयर इज नो इफेक्ट बट इफ द ड्यू इज अनडिस्प्यूटेड, इट्स अ डीम्ड एक्सेप्टेंस, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ ऑर्डर होना ही होना है, व्हिच हैपेंड, एंड अल्टीमेटली दे हैव टू सेटल इट आउट। सो नो, द आइडिया, द पॉइंट इज कि आपके केस किसी के भी अगेंस्ट हो, दिस रेमेडी इज वेरी वेरी पावरफुल एंड एप्लीकेबल अगेंस्ट एनीबडी इन द कंट्री, अगर आप इसको प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करें और अगर आपके ड्यूज अनडिस्प्यूटेड है तो। थर्ड, जैसा मैंने कहा, भेल को का एक 15-16 लाख का अमाउंट पेंडिंग था, जिसको जैसे ही उनको आईबीसी का नोटिस मिला, इमीडिएटली विद इन कपल ऑफ वीक्स दे क्लियर्ड दैट अमाउंट व्हिच वाज पेंडिंग फॉर 5-6 months till that time. Then there was this case of Gupta Infrastructure Limited against the State Distribution Power Company Limited. So उन्होंने काफी बड़ी सप्लाई की थी, करीबन 21 करोड़ की, जिसमें से 1 करोड़ 80 लाख पेंडिंग था उनका। उस 1 करोड़ 80 लाख को क्लेम उन्होंने एमएसएमई समाधान में किया,
और उस वो 1,80,00,000 तो उनको मिला ही मिला, उस 1,80,00,000 के साथ साथ दे वर ऑल्सो अवॉर्डेड इंटरेस्ट ऑफ 3,60,00,000 अप्रोक्सीमेटली, मतलब जितने का प्रिंसिपल अमाउंट पेंडिंग था उससे डबल का उनको इंटरेस्ट भी मिला। अब ये इंटरेस्ट सिर्फ ये पेंडिंग प्रिंसिपल पे नहीं था, ये इंटरेस्ट जो ऑलरेडी उनको पैसे मिल चुके थे 21 करोड़ में से, वो भी डिले के साथ मिले थे, 45 दिन के बाद मिले थे, तो उसपे भी उनको इंटरेस्ट मिला, और वो इंटरेस्ट जोड़ करके 3,60,00,000 हो गया। So the state distribution company, a very powerful entity in any state, they were not paying these dues, ये उनको पे करना पड़ा, और ये इंटरेस्ट का भी ऑर्डर का अमाउंट हो गया उनके साथ। बट ऐसे केसेस में जनरली ये भी होता है कि हमारे कस्टमर है, क्लाइंट है, हम इसमें आगे रिलेशनशिप ना खराब हो जाए, बट अगर पैसे नहीं देंगे तो ऑब्वियसली यू हैव टू फाइल समथिंग फॉर रिकवरी ऑफ योर ड्यूज। तो सेटलमेंट करके आप अपने इंटरेस्ट को वेव ऑफ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ताकि आपका प्रिंसिपल सिक्योर हो जाए। बट ये ऑर्डर हुआ विच इज इन पब्लिक डोमेन। देन देयर वाज दिस केस जहां पर जो जैसा मैंने कहा, जो रेफरेंस है सेक्शन 18 ऑफ एमएसएमईडी एक्ट, उसमें ये बोला गया है कि आप अगर एमएससीएफसी के पास रेफरेंस आर्बिट्रेशन करते हैं, सो इट विल ओवरराइड एनी ऑफ योर कॉन्ट्रैक्ट आर्बिट्रेशन क्लॉज। तो सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के जजमेंट को अपील किया, जिसमें गुजरात हाई कोर्ट ने बोला कि अगर आपके प्राइवेट गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कोई आर्बिट्रेशन क्लॉज है तो वो मैटर नहीं करेगा अगर सामने वाली जो पार्टी है वो माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज है, और अगर वो एमएससीएफसी के पास चली गई अंडर द एमएसएमई एक्ट, तो वही रेमेडी काम आएगी, आपके कॉन्ट्रैक्ट का आर्बिट्रेशन क्लॉज नहीं आएगा, विच इज जनरली वन साइडेड। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। अगर आपकी गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और अगर आपको पेमेंट रिकवर करना है तो यू आर नॉट बाउंड बाय ओनली द आर्बिट्रेशन क्लॉज। सिमिलरली कर्नाटका स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का भी एक जजमेंट है, जिसमें अंडर विच जो सेक्शन 19 है, जिसमें मैंने कहा कि 75% ऑफ द अमाउंट हैज टू बी डिपॉजिटेड बिफोर फाइलिंग द अपील। तो केएसआरटीसी के अगेंस्ट एक ऑर्डर हुआ था जिसमें उनको 75% जमा करना था, तो उसको उन्होंने चैलेंज किया कि ये आर्बिट्री है, इनइक्वल है, बिकॉज सिर्फ ये सामने वाली पार्टी को जमा करना है, हमको ही जमा करना है, अगर एमएससी के अगेंस्ट ऑर्डर होता है तो उनको जमा नहीं करना है। बट द गवर्नमेंट upheld that provision and said that कि it is a special legislation जो एक माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज के फेवर में है, क्योंकि दे आर स्मॉल इन साइज, दे आर लेस पावरफुल देन द बिगर कॉर्पोरेशंस। इसीलिए ये प्रोविजन जरूरी है कि उनका वो दे डोंट रन आउट ऑफ बिजनेस, और उनके जो पैसे हैं वो सिक्योर रहें। सिमिलरली और भी ऐसे बहुत सारे केसेस हुए जिसमें सेक्शन 19 की रिक्वायरमेंट को चैलेंज किया गया, ये 75% डिपॉजिट की कि इसको हटाया जाए। डिफरेंट हाई कोर्ट्स एंड इवन सुप्रीम कोर्ट एंड एट ऑल टाइम्स ये जो रिक्वायरमेंट थी 75% डिपॉजिट वाली, ये अपहेल्ड हुई है, दैट एनीबडी हु हैज टू चैलेंज एन ऑर्डर ऑफ एमएससीएफसी, भले ही वो आर्बिट्रेशन में हो, दे हैव टू डिपॉजिट 75% ऑफ द अमाउंट। सो योर क्लाइंट कैन नॉट से दैट कि एमएससीएफसी में चले भी गए हो और मैं हार गया तो मैं अपील कर दूंगा, बट उसको अपील करनी है तो सब 75% डिपॉजिट करके ही करनी होगी, जिसकी वजह से बहुत सारे क्लाइंट्स मेजॉरिटी ऑफ द केसेस को सेटल कर लेते हैं। दैट इज व्हाई जो हमने फिगर्स देखे, मोर देन 50% ऑफ द केसेस आर सेटल्ड बाय द ऑपोजिट पार्टीज रेदर देन फाइटिंग इट आउट इफ द केस इज अनडिस्प्यूटेड। देन जो देयर आर डिफरेंट ऑर्डर्स जो हमने लिखे हैं डिफरेंट हाई कोर्ट्स के, जिसमें उन्होंने ये बोला है कि जो एमएसएमई एक्ट के प्रोविजंस हैं वो आपके कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ओवरराइड करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट के क्लॉजेस वहां पर एप्लीकेबल नहीं होंगे, कॉन्ट्रैक्ट का आर्बिट्रेशन क्लॉज भी एप्लीकेबल नहीं होगा, द एमएसएमई एक्ट के प्रोविजंस ही वहां पर अप्लाई करेंगे। सो नाउ वी हैव सीन द 3 मेथड्स, 3 मोड्स, उनके लिमिटेशंस, उनके सक्सेस रेशियोज, उनकी सक्सेस स्टोरीज भी कुछ हद तक हमने देखी। बट व्हाट डू यू नीड टू डू नाउ टू रिकवर योर ड्यूज? आपको क्या करना होगा जिससे आप अपने जो पेंडिंग ड्यूज है उसको रिकवर करना धीरे धीरे स्टार्ट कर लें? फ्यू ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस। सो यू शुड चेक ऑल योर पेंडिंग ड्यूज फॉर एटलीस्ट लास्ट 3 to 5 years। अपनी बुक्स को खोलिए, पिछले 3 से 5 सालों के या उससे ज्यादा के जो ड्यूज हैं उसको चेक करिए। लीगल नोटिसेस आप भेजना स्टार्ट करिए एज पर द एमएसएमईडी एक्ट, जो प्रोविजन हमने देखे हैं, और आईबीसी कोड के अंडर भी आप लीगल नोटिसेस भेज सकते हैं, सो दैट दे स्टार्ट कमिंग इनटू एक्शन। आपका अपोजिट पार्टी जो है वो एक्शन उस चीज को देखे और वो रिकॉग्नाइज करे। अगर वो रिकवरी नहीं होती तो आप एमएसएमई समाधान के अंदर, अगर आप एक माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं तो आप एमएसएमई समाधान के अंदर फाइल कर सकते हैं। ये स्टेप्स अगर आपने कर लिए तो चांसेस आर कि यू मे रिकवर majority of your dues if you're doing it in the right manner, if you're sending them the notice in the right format and telling them all the provision in the proper manner.
और अपने आपके जो पेमेंट प्रोविजंस हैं अगर वो 45 दिन के ऊपर है एंड इट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर यू, देन जो हमने सेक्शन 15 देखा था, यू कैन ऑलवेज गो टू योर एमएस, you can always go to your client and tell them कि boss there is a provision in the act which says that कि आपको 45 दिन में मुझे पेमेंट करना है, तो आपको ये पेमेंट करना जरूरी है। देन जो माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं उनके लिए एमएसएमई समाधान एप्लीकेबल है, मीडियम के लिए या ट्रेडर्स के लिए एमएसएमई समाधान एप्लीकेबल नहीं है ये, तो दे कैन लुक इनटू द प्रोविजंस ऑफ द कमर्शियल कोड्स जो काफी स्टेट्स में अब खुल गए हैं, व्हिच आर क्विकर देन द सिविल कोड्स या आर्बिट्रेशंस फॉर इजी एंड क्विक रेमेडी व्हिच आर बेटर देन एंड क्विकर देन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स रेमेडीज। सो प्लीज एंश्योर दैट यू आर सेंडिंग प्रॉपर लीगल नोटिसेस एंड मेकिंग आउट द प्रॉपर केस सो दैट आपका जो डिले है वो प्रॉपरली अमाउंट फॉर हो जाए और कोई डिले और लैचेस की वजह से आपका जो एप्लीकेशन है वो डिसमिस ना हो जाए। At the same time, please ensure you're doing the calculations right, you're doing all the documentation right, and all the information is filed accurately and correctly. बट ये सारे स्टेप्स जो हमने बात किए, जो आपको ये लेने हैं पहले, इनको इम्प्लीमेंट करने में देयर आर फ्यू चैलेंजेस विच द बिजनेस ओनर्स फेस। एक, लैक ऑफ लीगल नॉलेज, कुछ तो अभी हमको मिल गया, दिख गया। सेकेंड, लैक ऑफ टाइमली एक्शन, बिजनेस ओनर्स एमएसएमईज जो होते हैं वो अपने ऑपरेशंस में इन्वॉल्व होते हैं जिस वजह से दे आर नॉट एबल टू टेक द टाइमली एक्शन, जिस वजह से वो चीजें पीछे छूटती जाती हैं। लैक ऑफ टाइम, उतना टाइम नहीं होता कि जो अप्रोप्रिएट लीगल रेमेडीज हैं उसको समझें और उसको फिर इम्प्लीमेंट करें। वो वैसी इमीडिएट लीगल टीम नहीं होती। हालांकि जो हमने प्रोविजंस डिस्कस की अभी वो काफी बेसिक हैं और विच आर इजी टू अंडरस्टैंड, विच आई एम श्योर आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि ये चीज अगर प्रॉपर पता हो और प्रॉपर फॉर्मेट और नॉलेज हो तो शायद आप कुछ हद तक तो खुद ही कर पाए, पर क्योंकि वो नॉलेज नहीं है, क्योंकि वो फॉर्मेट्स नहीं है, लीगल टीम नहीं, इसलिए आप वो नहीं कर पाते, विच लीड्स टू अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स इन ड्राफ्टिंग एंड फाइलिंग, जिस वजह से आपको ड्राफ्टिंग एंड फाइलिंग में काफी गलतियां होती हैं। एंड अ लॉट ऑफ एमएसएमईज, बिजनेस ओनर्स, दे जनरली रिलाई ऑन देयर नॉन लीगल टीम, जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट या कोई अकाउंट्स का बंदा है कि तू उसको भेज, फॉलो अप कर, कोई ईमेल कर दे, जिसकी वजह से wordings go wrong, the claim goes wrong, proper format में notice नहीं जा पाते और which leads to delay in the recovery of the money. And अगर आपने फाइल कर भी दिया, बहुत सारे लोग होते हैं जो खुद ही समाधान वगैरह में फाइल कर देते हैं और उसको परस्यू कर लेते हैं, बट स्टिल फॉलो अप नहीं कर पाते, जिस वजह से द केसेस कीप गेटिंग डिलेड एंड एज दे से जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। सो ये सब चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से डिलेड पेमेंट जो है, लैक ऑफ लीगल नॉलेज, लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ नॉलेज हाउ टू इम्प्लीमेंट इट, लैक ऑफ द अप्रोप्रिएट लीगल रेमेडी एंड द अप्रोप्रिएट स्किल्स टू इम्प्लीमेंट दीज, इस वजह से जो डिले पेमेंट है दैट इज टुडे बिकम द बिगेस्ट पेन पॉइंट ऑफ इंडिया। बिकॉज ऑफ द अबाउ, जो नॉन रिकवरी और डिले पेमेंट्स है, दैट हैज बिकम द बिगेस्ट पेन पॉइंट ऑफ इंडिया, बिकॉज एमएसएमईज आर, एज आई सेड, 99.5% ऑफ द कंपनीज टुडे इन इंडिया आर एमएसएमईज, और उनका सबसे बड़ा पेन पॉइंट है डिले पेमेंट, नॉन रिकवरी, और इस वजह से इट हैज बिकम द बिगेस्ट पेन पॉइंट ऑफ इंडिया, व्हिच इज अफेक्टिंग एवरी सिंगल बिजनेस। कोई भी एमएसएमई हो, कोई भी बिजनेस ओनर हो, व्हिच फॉर्म्स द backbone of the Indian economy, still they are suffering from this payment or they're bound to suffer from this problem in future. Do you guys agree? And having dealt with thousands of business owners, in our experience, the only solution, ये जो सबसे बड़ा पेन पॉइंट है, इस पेन पॉइंट को सॉल्व करने का एक सबसे बड़ा सॉल्यूशन है, क्योंकि इतने सारे हैं कि इट्स नॉट पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ देम टू टेक द राइट रेमेडी और टू बी एबल टू अफोर्ड द राइट रेमेडी। तो द ओनली सॉल्यूशन इज कि उनको खुद को ये नॉलेज हो कि वो इस चीज को समझ पाए और वो इस चीज को इंप्लीमेंट कर पाए, और खुद को जब नॉलेज होगा तो बहुत बहुत हद तक दे विल बी एबल टू रिकवर अ लॉट ऑफ देयर ड्यूज ऑन योर ओन। सो डू यू थिंक कि आज जो आपको नॉलेज मिला, इट हैज बीन हेल्पफुल? प्लीज टाइप यस कि अगर आप आज जो आपको नॉलेज मिला, दिस इज हेल्पफुल फॉर यू, दिस इज समथिंग विच यू डिडंट न्यू, पर अगर पता होता तो शायद बहुत हद तक आप बात कर पाते। And believe me कि what I have told you in, and I don't know in how much time, ये जो मैं आपको 1.25 घंटे में बताया हूं, this is only the tip of the iceberg. ये there is a lot more to it, and
यही चीजें हैं, पर इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, कि कैसे इनको डिटेल में समझना है, जो बहुत बड़ा काम नहीं है, पर विच विल रियली हेल्प यू इन द राइट मैनर। इसका थरो नॉलेज आपको होना जरूरी है, जिससे आप इसको इंप्लीमेंट कर पाए, अपनी टीम से इस चीज को इंप्लीमेंट करवा पाए। सो डू यू वांट टू सॉल्व दिस बिगेस्ट पेन प्रॉब्लम ऑफ योर लाइफ, द प्रॉब्लम ऑफ डिलेड पेमेंट, बाय गेटिंग द राइट नॉलेज एंड गेटिंग द राइट mode to implement it knowledge? Do you guys want to know how you can get a thorough knowledge and the thorough implementation technique? Would you like to know that solution जिससे आप पूरे नॉलेज को ले पाए? एब्सोल्युटली, जिसको आप प्रैक्टिकल में इस नॉलेज को इंप्लीमेंट कर पाए समझ करके, क्योंकि ये 1 घंटे का नॉलेज नहीं होगा। Great. So in our experience, we face that problem, having dealt with so many of the business owners, and we realize that if we have to help people at a larger level, so we need to empower them. We need to empower the business owners, and for that, we have specifically designed the solution for this problem, which we thought is a money recovery course for all business owners. We have designed a course which is in just under 5 hours, that is only under 300 minutes. You will get to know the three methods in detail which we have just discussed, these 3 secrets which people don't know, using which आप अपने पेमेंट्स की रिकवरी अपने आप कर सकते हैं जीरो कॉस्ट पे, फुल्ली ऑन योर ओन एंड अगेंस्ट एनी कंपनी इन इंडिया। और इसके लिए जैसा आपने ऊपर देखा, सिविल या क्रिमिनल कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। जो मैंने आपको बताया वो सिर्फ एक ट्रेलर है। अगर ये 300 मिनट आपने अपनी लाइफ की इन्वेस्ट कर दी है इसमें, इस ऑनलाइन कोर्स में, इवन इफ यू हैव जीरो नॉलेज, जीरो एक्सपीरियंस, या कोई रिसर्च भी करने का टाइम नहीं है, आप नहीं कर सकते, तो भी आपको ये तीनों के तीनों जो मेथड्स हैं, आप इसके मास्टर बन सकते हैं। आप पूरा का पूरा देखकर समझ सकते हैं, एंड दैट टू इट इज एन ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स। यू कैन सी इट एंड वॉच इट फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर ओन होम, अपनी टीम के साथ, अपने ऑफिस में, अपने टाइम के हिसाब से। इसको सिर्फ 300 मिनट इन्वेस्ट करके लाइफ के, यू कैन ट्राई एंड गेन दिस नॉलेज इन डिटेल एंड गेट दो स्टेप्स हाउ टू इंप्लीमेंट इट, विच इज द बिगेस्ट रीजन व्हाई MSMEs आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम। एंड व्हाट इज द बेनिफिट विच यूल गेट फ्रॉम दिस कोर्स, फ्रॉम दिस मनी रिकवरी कोर्स, जो सिर्फ 300 मिनट का 5 घंटे का कोर्स है ये। नॉलेज फॉर लाइफ, यू विल गेट द लाइफ टाइम एबिलिटी to recover all your long term and short term dues. अपने आप अपने काफी सारे फंसे हुए पैसों को इस कोर्स को समझकर इंप्लीमेंट करके विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प आप रिकवर कर पाएंगे। यू विल नो कि किस कंपनी के अगेंस्ट क्या एक्शन लेना है खुद से, एंड एट जीरो कॉस्ट, सो दैट यू कैन रिकवर योर ड्यूज on your own against anybody. Then you will ensure correct and complete documentation, ताकि कोई आपकी गलतियां ना हो कहीं भी फाइलिंग करने में, जिसकी वजह से क्लेम्स रिजेक्ट हो जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, आप अपनी टीम को ट्रेन कर पाएंगे, जिससे आपको यू डोंट हैव टू डिपेंड ऑन एक्सटर्नल पीपल फॉर फाइलिंग, and you will get a reputation when you'll have the knowledge, then you will get a reputation with your clients। जब अपने clients को आप कुछ provisions बताएंगे या उनको proper format में email या notice भेजेंगे, तो the client will know कि boss इस बंदे को पता है कि क्या laws हैं, आज इसका पेमेंट रुक गया, अगली बार से इसका पेमेंट मत रुकना, प्रायोरिटी दे देना इसको पेमेंट करने में। That will definitely make an impact, and obviously that will solve your cash flow problems, that will help you reduce your CC limits borrowings। आपकी cash flow बढ़ेगी तो आपके loans limits कम होंगे, and धीरे धीरे when you make a part of your business, part of your process, which is very very important, you will start recovering your dues gradually, and you will be able to become a better negotiator, your team will be able to become better at negotiations, क्योंकि ये provision जब आप use कर पाएंगे तो आपका client will not be able to say much against you, because this is the law of the land। 45 दिन में करना है तो 45 दिन में करना है, contract में मैं 60 दिन नहीं लिख सकता, because it is law of the land। So that will help you become a better negotiator। You will get strong contracts। जब आप इस कोर्स को देखेंगे तो इसमें हमने ऐसे क्लॉजेस वगैरह भी दिए हैं, जो अपने कॉन्ट्रैक्ट्स में आप छोटे छोटे चेंजेस करोगे तो यू विल गेट दो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स और वर्ल्ड क्लास रिकवरी सिस्टम्स फॉर लाइफ। आप कुछ छोटे छोटे प्रोविजंस को जान करके उसके स्टेप्स को इंप्लीमेंट कर पाओगे तो यू विल गेट दोस वर्ल्ड क्लास रिकवरी सिस्टम्स, यूजिंग व्हिच यू कैन इजीली, व्हिच द MNCs जनरली फॉलो, by which you will be able to recover a lot of your dues on your own। And the last and the most important one, you will get our hand holding for life।
आपको इस कोर्स को आपने देख लिया, इंप्लीमेंट कर लिया, आपको किसी भी सिचुएशन में किसी भी एंगल पे कोई डाउट है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो यू विल हैव आवर सपोर्ट, विल हेल्प यू अंडरस्टैंड दैट प्रोविजन एंड विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड करेक्टली एंड इंप्लीमेंट इट करेक्टली at your part. And along with the following resources जो आपको इस कोर्स के साथ मिलेंगे, you will get all formats, you will get step by step process for taking action, checklist, explanatory videos, everything. जो नॉलेज हमने यहाँ डिस्कस किया है वो पूरा डिटेल में होगा एंड उसके सारे स्टेप्स होंगे, फॉर्मेट्स होंगे, जिसके लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या डालना है, एग्रीमेंट में क्या डालना है, नोटिस किस फॉर्मेट में भेजना है, कैसे भेजना है, क्या चेकलिस्ट है, क्या वीडियोस है, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है पिछले 5 सालों के, आपको वो सब मिल जाएगा इस कोर्स में. सो डू यू थिंक दैट इन्वेस्टिंग जस्ट 300 minutes of your life in doing this course and getting the knowledge will be helpful for you, your business, your team, your family? Do you think this will help you if you are able to understand it all? If you are able to get the right knowledge, if you are able to get the right knowledge to implement it, if you are able to get the right resources, because we खुद से कर पाएंगे. We don't want to give you a fish, we want to learn to how to fish. So do you guys want to know more about this course, how you can take this course, how can you can go forward in this course? Right. So this course, so you will have all those benefits which you have discussed, and for your life you will get to know those 3 ways which you can recover, by which you can recover your dues without going to civil or criminal court. Majority of your dues you will get those skills, knowledge, tools, formats, provisions, everything which will help you maximize your recovery and minimize your bad debts and losses for your life and for generations to come. So knowledge is power, and this small course will change your life. And as requested, let's see. So this is Money Recovery Course Advanced for all MSMEs and business owners, and also for the graduates and the professionals who wants to make their career in the money recovery industry. Using this course, आप अपने पैसों को खुद से रिकवर कर पाएंगे at zero cost and without going to court against any company in India or world. This course comes with a 12 months validity और इसका प्राइस है 24,999, which comes with 7 days 100% money back guarantee. आपने इस कोर्स को लिया और आपने इस कोर्स को 7 दिन में कितनी बार भी देख लिया, 300 मिनट का ये कोर्स है, आपने सारे फॉर्मेट्स, रिसोर्सेज, चेकलिस्ट डाउनलोड करके रख लिए, स्टिल यू कैन क्लेम योर 100% मनी बैक विद इन 7 days, no questions asked. But now we have now launched our special limited period subscription plan, जिसमें हम monthly and yearly subscriptions पे जा रहे हैं for the benefit of our course participants and especially for our YouTube subscribers as well. हमने भी have launched this with a 90% discount. So the same thing, the same course, Money Recovery Course Advanced, using which you'll be able to recover all your dues on your own at zero cost against any company in India or world. Ye course, rather than being priced at 24,999 for 12 months validity, which was a fixed one-time price, it's now coming up with this monthly plan of only 299 per month, and with a yearly plan of 2,999 per annum only. This is a very, very special subscription plan launch offer for giving full hand holding for our course subscribers. हमने ये launch किया है, especially for YouTube subscribers who can avail this special offer by registering for this course. और आप register कर सकते हैं, जो screen पे आपको एक QR code दिख रहा है screen के bottom पे, उसको scan करिए और आप हमारे course registration page पे चले जाएंगे और वहां से आप register कर सकते हैं for monthly plan or yearly plan. And you can also register by going to the link which is there at the bottom. और ये जो link है ये, this is also mentioned in the description of this video. So you can either register by using this link moneyrecovery.co.in/subscribe or by scanning this QR code, either monthly plan or yearly plan. But to make it more sweet, and also that it comes with a 100% money back guarantee and 21 days money back guarantee हमने कर दी है स्पेशल प्लान के लिए. तो अगर आप मंथली प्लान या ईयरली प्लान है तो जो 7 days की मनी बैक थी वो आपको 21 days की मनी बैक गारंटी है. आपने ये कोर्स ले लिया, आपने ये कोर्स देख लिया और आपने सारे फॉर्मेट्स, चेकलिस्ट, रिसोर्सेज भी डाउनलोड कर दिए, तो आपने भले मंथली प्लान या ईयरली प्लान लिया हो, यू कैन ऑलवेज क्लेम योर 100% मनी बैक विद इन 21 days. तो ये 7 days से बढ़कर इस स्पेसिफिक लॉन्च के लिए हमने
ओनली 21 डेज करती है। एंड फर्दर टू मेक इट मोर स्वीट फॉर अर्ली एक्शन टेकर्स, एवरी डे जो फर्स्ट 100 रजिस्ट्रेंट्स होंगे हमारे एंड वो आर यूट्यूब सब्सक्राइबर्स, उनके लिए हमने इस कोर्स को और भी स्पेशल बना दिया है ज्वाइनिंग को। फॉर द मंथली प्लान जो आप 299 पर मंथ में ज्वाइन कर सकते हैं, साथ में इफ यू आर वन ऑफ द फर्स्ट 100 रजिस्ट्रेंट्स ऑफ द मंथली प्लान तो आपको एक 1+1 ऑफर भी मिलेगा। सो यू कैन नॉट ओनली ज्वाइन फॉर योर सेल्फ बट आपकी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, आपके पार्टनर या एम्प्लॉय या जो भी हो या डायरेक्टर, आप उनको भी ज्वाइन करवा सकते हैं एट द सेम प्राइस। तो एक नहीं, हम 2 लोगों को आपके लिए इस कोर्स में रजिस्टर करके देंगे एट द सेम प्राइस इफ यू आर वन ऑफ द फर्स्ट 100 registrants every day and you're a YouTube subscriber. And for the yearly plan we have made it even more sweeter, which comes at 2,999 per annum only. अगर आप yearly plan में रजिस्टर करते हैं, so not only that you get extra 20% discount. आप सिर्फ you pay for 10 months and but you get 12 months because you're paying for the whole year altogether. आपको 1+1 ऑफर भी मिलेगा। आप अपनी ही कंपनी से अपने पार्टनर, एम्प्लॉय या डायरेक्टर किसी और को रजिस्टर करा सकते हैं अपने साथ, तो आपका प्राइस कम्स हाफ। प्लस इसके साथ साथ यू विल गेट अ फ्री साइन कॉपी ऑफ माय बुक टॉप 3 सीक्रेट्स टू रिकवर योर मनी एट जीरो कॉस्ट, विच इज अवेलेबल ऑन अमेजॉन। इसका प्राइस ही 2,999 है, वो आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी, पर्सनली साइंड बाय मी। प्लस यू विल गेट अ कैशबैक डिस्काउंट ऑफ ₹10,000 पर ईयर ऑन आवर डेट रिकवरी सर्विसेज। नो एक्सपायरी, इट हैज लाइफ टाइम वैलिडिटी। तो आप अगर फर्स्ट ईयर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको हर आपकी सब्सक्रिप्शन के ईयर पे 10,000 रुपए तक का कैशबैक डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप हमारी डेट रिकवरी सर्विसेज लेते हैं उसमें आपको 10,000 स्ट्रेट आप जो पे करेंगे वो कैशबैक हो जाएगा। एंड इट हैज नो एक्सपायरी। आप जितने साल के लिए हमारा सब्सक्रिप्शन कंटिन्यू करेंगे हर साल के लिए आपको 10,000 मिलेगा और आप उसको कभी भी यूज कर सकते हैं, एक साथ यूज कर सकते हैं, आज से 2 साल बाद, 5 साल बाद, कभी भी आप उसको क्लेम कर सकते हैं। सो द लिंक फॉर रजिस्ट्रेशन रिमेन्स द सेम विच इज देयर इन द बॉटम। ये जो आप क्यूआर कोड है इसको स्कैन करके आप कर सकते हैं, या तो इस लिंक moneyrecovery.co.in/subscribe पे जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। दिस लिंक इज ऑल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो, so you can also check from there. And it comes with a 100% 21 days money back guarantee. अब इस कोर्स का कवरेज क्या है आप सोच रहे होंगे, so let me just tell you the coverage of the course. So all the monthly subscribers almost in just ₹10 per day, because 299 per month है तो वो 10 रुपए पर डे ही होता है। You get following, आपको जो हमने अभी देखा MSME Act 2006 के सारे मनी रिकवरी के इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, MSME समाधान के पूरे डिटेल प्रोविजंस, IBC को 2016 के जो पूरे प्रोविजंस है, मैंने आपको सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग बताया है। पर इस 5 घंटे के कोर्स में 300 मिनट में मैं आपको सारा डिटेल्ड पूरा उसमें नॉलेज दूंगा, विच इज एन ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स है, उसमें ये सारा आपको मिलेगा। मेरे 21 वीडियोस हैं जो टोटल 300 मिनट के हैं, जिसके साथ आपको पूरे नोटिस के फॉर्मेट्स, ड्राफ्ट्स, चेकलिस्ट, जिससे कि आप इस कोर्स को बिल्कुल स्मूथली इंप्लीमेंट कर पाएंगे, वो आपको मिलेगा। प्लस आपकी टीम को दिखाकर आप ट्रेन कर पाएंगे, क्योंकि इफ यू आर वन ऑफ द फर्स्ट 100 पार्टिसिपेंट और आपको 1+1 ऑफर मिलता है तो अपनी टीम के लिए भी आप ले सकते हैं। आपकी टीम इस कोर्स को देखकर पूरा ट्रेन हो जाएगी। प्लस एवरी वीक आई एम गोना बी डूइंग अ लाइव कोचिंग एंड द Q&A सेशन। मैं हर हफ्ते यूट्यूब पे, जूम पे लाइव अपने कोर्स पार्टिसिपेंट्स के लिए आई गो लाइव एंड आई डू लाइव कोचिंग ऑन वन ऑफ द टॉपिक्स। प्लस जो भी आपकी क्वेरीज होती है रियल टाइम बेसिस पे 1-to-1 उस लाइव सेशन पे मैं आपका रिजॉल्व करता हूँ, विच टेक्स अवे all your problems and challenges in implementation of the course and recovery of your money. Plus you also get regular access to the updated course and formats all the times. So ये course we keep updating it with the latest formats and as per the new learnings and as per the experiences of the users, because the law keeps evolving. तो हम ये ensure करते हैं कि आपको जो course अभी मिल रहा है वो बिल्कुल latest हो और जो best techniques use हो रही हैं वो सारी की सारी आपको मिले और सारे आपको latest formats मिले, which you keep getting. Plus you get 24/7 unlimited problem solving and advisory over email and WhatsApp. आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, कोई भी क्वेरी आ रही है, आप मुझसे लाइव Q&A में पूछेंगे। प्लस आपको एक हेल्प एंड सपोर्ट फॉर्म दिया जाएगा जो हमारे हेल्प एंड सपोर्ट पोर्टल पे जाता है, तो आप उस फॉर्म को फिल करेंगे तो आपको ईमेल पे, व्हाट्सएप पे उसका अनलिमिटेड टाइम्स यू कैन फिल दैट फॉर्म एंड यू विल गेट अनलिमिटेड नंबर ऑफ रिप्लाईज फ्रॉम आवर साइड। प्लस आपको जो हमारे लाइव Q&A होते हैं आप किसी कारण से नहीं देख पाते तो आपको उसकी रिकॉर्डिंग्स का लाइव रिकॉर्डिंग्स का भी एक्सेस मिलेगा, विच इज प्राइसलेस, बिकॉज बहुत सारे लोग अपनी एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, प्लस बहुत सारी क्वेरीज रिजॉल्व होती हैं, विच इज वेरी वेरी बेनिफिशियल। सो ऑल इन ऑल द टोटल वैल्यू विच यू गेट जस्ट बाय सब्सक्राइबिंग टू दिस कोर्स इज मोर देन 3 लाख रुपीज, जो आपको सिर्फ इस कोर्स में सब्सक्रिप्शन करके मिलेगी। सो दिस वैल्यू यू आर गेटिंग ओनली
for the monthly plan of 299, which is not even 10 rupees per day. Plus, if you are one of the first 100 registrations and a YouTube subscriber, तो आपको 1+1 offer भी मिलेगा with this course. So this is this QR code and this is the link. It is also there in the chat box. तो इस QR code को स्कैन करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या यूजिंग दिस लिंक moneyrecovery.co.in/subscribe को यूज करके आप स्कैन रजिस्टर कर सकते हैं. आप किसी भी वक्त कैंसिल कर सकते हैं. एनी विच वेज आपके पास 21 डेज 100% मनी बैक गारंटी है. जब आप सब्सक्रिप्शन करेंगे तो उसके बाद 21 दिन के अंदर आप यू कैन ऑलवेज टेक योर मनी बैक. दिस इज ओनली फॉर द लिमिटेड टाइम एंड फॉर द लिमिटेड सीट्स, सो प्लीज एक्ट नाउ. अब ईयरली प्लान, ईयरली सब्सक्राइबर्स के लिए क्या हमारा कवरेज है, तो वो सारा कवरेज जो हमने अभी मंथली सब्सक्राइबर्स के लिए देखा, विच वाज ऑफ वैल्यू मोर देन 3 लाख रुपीस, वो सारा ईयरली सब्सक्राइबर्स को मिलेगा. प्लस आपको 1+1 ऑफर भी मिलेगा. आपकी कंपनी के आप किसी एक बंदे को अपने साथ रजिस्टर करवा लेंगे एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. प्लस यू विल गेट एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट ऑन ईयरली सब्सक्रिप्शन, क्योंकि 299 पर मंथ है, विच 12 मंथ्स का करें तो वो 3600 होता है, पर यू ओनली हैव टू पे 2999. So you only pay for 10 months and enjoy for 12 months. वो आपको एक बेनिफिट मिलता है. प्लस you get free signed copy of my book, Top 3 Secrets to Recover Your Money, which is priced at 2999. It's available on Amazon. ये वो बुक है, Top 3 Secrets to Easily Recover Your Money and Delete Payments at Zero Cost. This book is live on Amazon. This is a must for all business owners and for the graduates who want to make their career. ये आपको absolutely free of cost मिलती है, personally signed by me, if you are one of the yearly subscribers for 2 hour course. Plus you get, as I said, cashback discount of rupees 10,000 per year as well on our debt recovery services for each year of your subscription. तो जब तक आप हमारे सब्सक्राइबर रहेंगे, हर साल के लिए आपको ये 10,000 पर ईयर का हम कैशबैक डिस्काउंट देंगे अगर आप हमारी डेट रिकवरी सर्विसेज अवेल कर रहे हैं. एंड नो, इट डजंट हैव एनी एक्सपायरी. इस साल आपने फॉर एग्जांपल पे करके कोर्स लिया पर आपने वो कैशबैक डिस्काउंट अवेल नहीं किया, तो अगले साल भी कर सकते हैं अगले साल के डिस्काउंट के साथ. सो इट हैज नो एक्सपायरी एंड इट हैज लाइफ टाइम वैलिडिटी, कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट मॉडल. एंड द लिंक फॉर रजिस्ट्रेशन इज सेम, moneyrecovery.co.in/subscribe. आपको मंथली प्लान, ईयरली प्लान, दोनों में से कोई एक चूज करना है. एंड द QR कोड रिमेन्स द सेम, उसको स्कैन करके आप registration कर सकते हैं. So the value you get for the yearly subscription, the same value as the monthly subscriber, plus extra 20% discount, plus 1+1 offer तो आपको मिलेगा ही. Plus you get a free signed copy of my book and you get cashback discount of 10,000 rupees per year if you are one of the yearly subscribers. So the price is not even 8 rupees per day. So this is a very, very special offer for all our YouTube subscribers who are able to register and who are among the top 100 registrants every day. So the question is, क्या आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करना चाहिए? आप सोच रहे होंगे, is this money recovery course for you? तो yes, this money recovery course is for you if you are a business owner or an MSME. भले ही आप एक मैन्युफैक्चरर हैं या ट्रेडर हैं या सर्विस प्रोवाइडर हैं, भले ही आपका कोई भी टर्नओवर हो, कितना भी बड़ा या कितना भी छोटा आपका टर्नओवर हो, एंड अगर आप MSME में आज रजिस्टर्ड हैं या नहीं है, फिर भी आपको ये प्रोविजंस को जानना बहुत जरूरी है फॉर टू बी एबल टू रन योर बिजनेसेस स्मूथली. एंड अगर आपको बैड डेट्स प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं रेगुलरली ऑन रेगुलर बेसिस, एंड आप अपने पैसों की रिकवरी, वो बिजनेस ड्यूज हो या एक्सपोर्ट ड्यूज हो, उनको आप टाइम पे नहीं कर पा रहे हैं, देन इट इज अ मस्ट दैट यू सब्सक्राइब टू दिस कोर्स एंड यू टेक द नॉलेज विच इज देयर इन द कोर्स. अगर आपको आपके टाइमली रिकवरी ऑफ ड्यूज की वजह से कैश फ्लो प्रॉब्लम आ रहा है, वर्किंग कैपिटल प्रॉब्लम आ रहा है, तो बहुत जरूरी है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास वो नॉलेज आ जाए, आपके पास वो स्किल सेट आ जाए जो सिर्फ इस कोर्स से आपको मिल सकता है. एंड इट इज ऑल्सो फॉर यू, अगर आप नहीं रिकवर कर पा रहे हैं बिकॉज आपके पास लीगल नॉलेज की कमी है, लीगल एक्सपर्टाइज स्किल की कमी है, या आप हर बार कॉस्टली लीगल सर्विसेज को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, देन इट इज ऑल्सो अ मस्ट टू ज्वाइन कोर्स फॉर यू. और इस वजह से आप अपने जो आपके डिफॉल्टिंग कस्टमर्स हैं उन पर प्रेशर नहीं क्रिएट कर पाते लीगली, जिससे आप अपने पैसों की टाइम पे रिकवरी नहीं कर पाते. ये कोर्स, एक कोर्स आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करेगा. प्लस ऑल्सो अगर आप अपनी टीम को ट्रेनिंग देना चाह रहे हैं जिससे कि आपकी टीम ही बहुत सारे आपकी रिकवरी नोटिसेस भेज सके और रेगुलर बेसिस पे उसको रिकवर कर सके खुद से इन हाउस एट जीरो कॉस्ट, देन दिस इज अ मस्ट फॉर यू. एंड ऑल्सो अगर आप कोई लीगल या अकाउंट्स ग्रेजुएट हैं या लीगल या अकाउंट्स प्रोफेशनल हैं एंड यू आर लुकिंग टू स्टार्ट अ न्यू करियर एंड यू आर लुकिंग टू मेक अ वेरी सक्सेसफुल 6-figure करियर इन डेट रिकवरी इंडस्ट्री, या आप एक ऑल्टरनेट इंडस्ट्री को भी ज्वाइन करना चाह रहे हैं, सो दिस इज अ मस्ट कोर्स फॉर यू, बिकॉज इस एक कोर्स को ज्वाइन करके यू विल बी एबल टू हेल्प
a lot of your clients to recover a lot of their dues, and this is very very high in demand, especially post pandemic, because almost पूरे 6 करोड़ 33 लाख जो MSMEs है इंडिया के, they're suffering from this delayed payments ka problem. So in summary, this course offers everything you need to recover your debts and delayed payments at zero cost, fully on your own, without going to court against any company in India or world, भले ही वो domestic dues हो या आपके export dues हो. Join कैसे करना है course को? It's the same QR code which is there on the screen at the bottom of your screen, or using this link moneyrecovery.co.in/subscribe. आप description में से भी इस link को ले सकते हैं to join the course. Now I would like to ask you, if you're still thinking that आप सोचिए अभी तक आपने कितने पैसे लूज किए हैं जो अभी तक आप रिकवर कर पाते, जो नॉलेज आपको आज हमने इस बेसिक मनी रिकवरी कोर्स में दिया, इस 1.5 घंटे की वीडियो में दिया, आपको क्या लगता है? इट कैन बी एनी नंबर्स, लेट्स टॉक इन नंबर्स. आप सोचिए और चैट बॉक्स में टाइप करिए, वेदर इट इज 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जो भी एक बॉल पार्क फिगर हो. और अगर आप वो रिकवर कर पाते मेजोरिटी ऑफ द ड्यूज, आप सोचिए, क्योंकि आपको वो नॉलेज नहीं था इसलिए वो आपके पैसे डूब गए, बट आर यू फीलिंग दैट अगर वो नॉलेज होता तो रिकवर कर पाते, तो वो कितने थे? और अगर आप उसको रिकवर कर पाते तो प्लीज थिंक एंड ऑल्सो टाइप कि वो आपको आज बिजनेस में कैसे हेल्प करता, ग्रोथ में, इंटरेस्ट फ्री होने में, एक्सपेंशन में, लोन फ्री होने में. हाउ इट वुड हैव हेल्प यू? मे बी आपको शायद इट वुड हैव गिवन यू मोर पीस एंड मोर पीस ऑफ माइंड एंड मोर टाइम फ्रीडम, और आपकी एक्सपेंशन आप ज्यादा कर पाते, प्लानिंग ग्रोथ ज्यादा कर पाते. हाउ इट वुड हैव हेल्प यू? आई वांट यू टू थिंक ऑन इट. एंड आपको अगर आज ये नॉलेज यूजफुल लगा, डिड यू फाइंड टुडेज नॉलेज यूजफुल, कि आपकी जो डिलेड पेमेंट्स का प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर पाए? आपको ये सोचना होगा. और अगर आपको लगता है कि हाँ यार ये नॉलेज आज जो मुझे मिला ये बहुत यूजफुल था, तो वेदर डिड यू हैड दिस नॉलेज बिफोर, और क्योंकि अगर आपको ये नॉलेज नहीं था तो आपने अभी तक कितना लूज किया है वो सोचिए. एंड आर यू रियलाइजिंग कि थोड़ा सा और आपको एक्सपर्टाइज और नॉलेज मिल जाए, थोड़ी सी हैंड होल्डिंग आपको और मिल जाए, तो आप अपने बहुत सारे पैसों की रिकवरी खुद ही कर सकते हैं विदाउट बीइंग डिपेंडेंट ऑन एनीबॉडी. एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू दैट यू ज्वाइन दिस कोर्स. तो मैं आपसे अभी ये आपको दिखाता हूं कि हाउ दिस कोर्स इज हेल्पिंग लॉट ऑफ MSMEs, बिजनेस ओनर्स एंड प्रोफेशनल्स एंड ग्रेजुएट्स अक्रॉस मोर देन 24 स्टेट्स इन इंडिया इन रिकवरी ऑफ देयर ड्यूज, जो वो खुद से कर पा रहे हैं. So let's have a look at the testimonials of few of the course participants जो इस कोर्स को यूज करके बहुत सक्सेसफुली अपने पैसों की रिकवरी कर पा रहे हैं, खुद से कर पा रहे हैं. So ये टेस्टिमोनियल्स को देखने के लिए आप मेरे ऊपर, ये जो आपको स्क्रीन पे मेरी फोटो दिख रही है उसके ऊपर देखिए एक आई का एक सिंबल आया होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे. आई पे लिखा है फ्रॉम MSME मनी रिकवरी विद विनय जैन, और उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको हैप्पी क्लाइंट्स टेस्टिमोनियल्स दिख जाएगा. सो प्लीज क्लिक ऑन दैट लिंक, और आपको हमारे जो एग्जिस्टिंग मनी रिकवरी कोर्स के क्लाइंट्स है फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री, फ्रॉम बॉम्बे, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड डिफरेंट पार्ट्स, आप देखेंगे कि कैसे वो इस कोर्स को यूज करके सक्सेसफुली अपने पैसों को रिकवर कर पा रहे हैं, इजिली कर पा रहे हैं, कैसे इस कोर्स के फॉर्मेट्स, चेकलिस्ट, नोटिसेस उनको हेल्प कर रहे हैं अपने पैसों की रिकवरी करने में, प्लस अपनी टीम को भी ट्रेनिंग कर पा रहे हैं, और वो इस चीज को देख पा रहे हैं कि विदाउट एनी नॉलेज दे आर नाउ एबल टू रिकवर देयर ड्यूज, जो अभी तक उनका सबसे बड़ा पेन पॉइंट था. So please click on the link just above me. आई लिखा हुआ है उसमें देखिएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको हैप्पी क्लाइंट्स टेस्टिमोनियल्स मिल जाएगा. प्लीज वॉच दैट, वॉच दोस वीडियोस, एंड यू विल गेट टू सी हाउ दिस कोर्स इज हेल्पिंग सो मेनी बिजनेस ओनर्स एंड हाउ इट कैन हेल्प यू. So we have many such course. Thousands of people across the country are getting benefited by this course. So in summary, in just under 10 rupees per day, this course offers you everything you need to solve your payment problems for life, your delayed problems for life. It gives you the right legal knowledge. It gives you when to use which remedy. It gives you all formats, checklist, step by step process for recovery. आपके पास राउंड द क्लॉक 24/7 वर्ल्ड क्लास लीगल एडवाइजरी होती है. आपको कोर्स को इंप्लीमेंट करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप सिर्फ एक हेल्प एंड सपोर्ट फॉर्म भरिए और आपके पास उसका ईमेल, व्हाट्सएप पे जवाब आ जाएगा. आपके जो भी इंप्लीमेंटेशन रिकवरी की प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होते हैं थ्रू हेल्प एंड सपोर्ट एंड थ्रू माई सेल्फ गोइंग लाइव एवरी वीक एंड आंसरिंग योर क्वेरी 1-to-1. आपकी टीम की पूरी ट्रेनिंग हो जाएगी बिकॉज रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं, कोई भी कहीं से भी कभी भी इस कोर्स को देख सकते हैं और कितनी बार भी देख सकता है. और आपकी टीम ट्रेन हो जाएगी तो आपका जो पूरा रिकवरी प्रोसेस है वो ऑटो पायलट पे आ जाएगा. एक सेशन मेरे साथ आपको मिलेगा जिसमें आई एम गोना बी कोचिंग यू, प्लस आई एम आल्सो गोना बी सॉल्विंग ऑल योर क्वेरीज, एंड ऑल दिस जस्ट अंडर रुपीज 10 रुपीज पर डे. और इससे आपकी जो रिकवरी की परमानेंट प्रॉब्लम है, साल भर की जो हर वक्त की 24 घंटे की प्रॉब्लम है, बहुत हद तक आप सॉल्व कर पाएंगे. सो द क्वेश्चन इज,
Why now? आपको आज इस कोर्स की जरूरत क्यों है? Which you are probably not everybody is able to realize कि आफ्टर पैंडेमिक, जैसा हमारे कोर्स पार्टिसिपेंट्स प्रेरणा जी वगैरह ने कहा कि एवरी बिजनेस इज नाउ सफरिंग फ्रॉम प्रॉब्लम ऑफ बैड डेट्स इन कैश फ्लो। ये सबसे बड़ा पेन पॉइंट बन गया है एमएसएमईज का। एंड विद द चेंज ऑफ एमएसएमई डेफिनेशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुडे, एज पर द एमएसएमई मिनिस्ट्री रिपोर्ट, 99% ऑफ द इंडियन कंपनीज आर नाउ एमएसएमई। उसमें भी 99.5% माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, इंक्लूडिंग योर सेल्फ। तो आप भी एक माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज की कैटेगरी में आ रहे हैं या मीडियम एंटरप्राइज कैटेगरी में आ रहे हैं, एंड हेंस यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस आउट ऑन दिस प्रोविजंस। क्यों? क्योंकि टुडे एज पर द लेटेस्ट डेटा बाय द मिनिस्ट्री, more than 93,400 business owners, so almost 1 lakh of business owners across the country, उन्होंने करीबन 24,000 करोड़ की रिकवरी के लिए प्रोविजंस पे इन प्रोविजंस को यूज करके इन स्कीम्स को केसेस फाइल किए गए, एंड एट जीरो कॉस्ट खुद से कर पा रहे हैं, एंड एट जीरो कॉस्ट कर पा रहे हैं। so, सोचिए 25,000 करोड़ की रिकवरी आज बिजनेस ओनर्स अक्रॉस द कंट्री कर पा रहे हैं, और आपको पता नहीं है कि ऐसे कुछ प्रोविजंस हैं या कैसे करना है, वो भी आपको नहीं पता। और ये जो मैं आपको डेटा और फिगर्स दे रहा हूँ, ये सारे के सारे मिनिस्ट्री की एनुअल रिपोर्ट्स हैं और उनकी वेबसाइट से, विच यू मे गो एंड क्रॉस वेरीफाई। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आज का ये जो नॉलेज आपको मिला, और इस नॉलेज का होना आपके लिए अब एक कोई लग्जरी नहीं रही है, बट अब ये नेसेसिटी बन गया है। बिकॉज व्हेन लैक्स ऑफ बिजनेस ओनर्स आर यूजिंग इट टू रिकवर मोर देन लाइक 25,000 crores, so it is no more a luxury for you, but it has become a necessity for your survival, else you will be left behind, आप पीछे छूट जाएंगे, somebody will overtake you। So it is very important that you act now and get this right knowledge and get trained कि ये कैसे करना है। And by this one course you are going to be getting 15 years of experience and knowledge in just 1 hour. Because this money recovery course gives you everything which you need to start recovering like a champion, start recovering like a pro. So don't miss out, register today, use this QR code which is there at the bottom of your screen, या ये लिंक हमने दिया हुआ है moneyrecovery.co.in/subscribe, इस पे जाके करिए। आपको डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक मिल रहा है, यू कैन गो देयर एंड रजिस्टर नाउ। नेक्स्ट स्टेप, हाउ इट वर्क्स आफ्टर यू हैव रजिस्टर्ड एंड पेड, आपको एक ईमेल आ जाएगा आपकी लॉगिन क्रेडेंशियल्स के साथ, एक आपको उसके साथ हेल्प एंड सपोर्ट फॉर्म भी आ जाएगा फॉर एनी क्वेरी यू मे हैव इन द कोर्स। और आपको कभी भी कोई भी क्वेरी होगी, प्रॉब्लम होगा, आप उस हेल्प एंड सपोर्ट फॉर्म को भर सकते हैं, एंड वी विल रिप्लाई टू यू ओवर ईमेल एंड व्हाट्सएप। आपको उसका रिस्पॉन्स आ जाएगा, आपको एक डेडिकेटेड सीआरएम भी अपॉइंट आपके फेवर में मिलेगी, हु इज गोना बी योर सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। So this is how the course works, with complete hand holding and support. So great, thank you so much. If you have registered, congratulations. If you have not, then please do it right now. And I hope you have liked the whole video and the knowledge which you have got. अगर आपको पसंद आया, आपको ये knowledge पूरा useful लगा, so please share as much as you can in your groups for the benefit of all the business owners of the country, of our nation, so that everybody can get this knowledge. And also please don't forget to subscribe to our channel and also press the bell icon, so that हमारे जितने भी knowledgeable और ऐसे videos हैं वो आपको मिलने लगे। So MSME Money Recovery with Vinay Jain, please subscribe to this channel, and if you have still not registered, then this is the barcode again to register for the course, and this is the link again, description में भी दिया हुआ है, moneyrecovery.co.in/subscribe. So I'll see you in the course right now. Till our next video, thank you so much, have a great day.